Good evening, everybody. Today's session is Ho'oponopono in Hindi. And today we have special guest Dr. Anuradha Modak from Delhi. She is into Advaita Vedanta. She has spiritual. I request all of you to mute yourself. Whenever you want to speak, you can unmute yourself and speak. Sorry for the interruption. Today we have special guest Dr. Anuradha Modak. She is from Delhi. She is into spiritual journey for last 17 years. We have a lot more to learn from her. It's just based on her experience. You can feel the energy when she is talking. And today's session is Ho'oponopono. The language will be in Hindi. As I am not much fluent in Hindi, so that I'm doing introduction in English. And she is a PhD. Actually, she is into traditional Indian mind healing techniques. And based on that, she has done research, and she's keep on doing research, and she's working on. And also she's into Reiki, hypnosis, and other healing modalities. And for last 7 years, she is into Ho'oponopono. I request Dr. Anuradha Madam to start the session. Madam, we are not able to hear you. Is it audible now? Yes, now it's clear. So I'm very, very thankful for this wonderful introduction. I'm really very honored and thankful. It's really very kind of you. I just saw in the group you announced if someone can take any session in Hindi, and I jumped into the water. So my intention was just to help and to extend my service across to the people who really find language as somewhere as a barrier, where language is not at all any kind of barrier for understanding self and for higher realization and even for manifesting better things in life. So I will take this session in Hindi for the benefit of all, but just to make it very comfortable with all of you, I'm actually a very English speaker. Hindi is a language because I belong to Delhi and it's a local language here. So I speak Delhi, but in between my words may come English because I'm programmed and tuned to think in English, and I'm Bengali, so my thinking process happened in that way. So please excuse in between if I start with few English words. So you can stop me, you can ask me, you can post the question in the chat as you feel comfortable. So I will start with a presentation. I will start to share the screen. Can you see the PPT here? Yes, we can see it. Okay. So what I'm going to talk about is mainly about our perception and how we can really change our perception to bring magnificent change in our life. It's not just about Ho'oponopono or any other practice, but it's mainly about our commitment. तो मैं अब जो बोलना चाह रही हूँ वो है हमारे परसेप्शन के बारे में, हमारी सोच जो कि हमारे थिंकिंग प्रोसेस से डेवलप होती है. जिस तरह से हम सोचते हैं, हम सोचने के साथ साथ अपनी एक विचारधारा बनाते हैं. सो हमारी वो विचारधारा हमारे लाइफ के हर एस्पेक्ट को, हर एस्पेक्ट, आप बोलिए आपके पास कितना पैसा है या आप किस तरह का जॉब चाहते हैं, आपका बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए, आपके रिलेशनशिप कैसे होने चाहिए, वो सभी चीजें हमारे परसेप्शन से डायरेक्टेड होती हैं. मगर कई बार कॉन्शियसली अर्थात सतर्क रहते हुए हम अपने उस परसेप्शन को समझ नहीं पाते हैं या देख नहीं पाते हैं, बिकॉज
हम काफी हद तक ईगो के इन्फ्लुएंस में रहते हैं। तो इस परसेप्शन को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें खुद से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते रहने चाहिए। हमें खुद से अपने जर्नी के बारे में, हम जहां पे भी फंसे हैं, अगर आई कैन सी हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर राइट नाउ हु आर प्रैक्टिसिंग हो'ओपोनोपोनो फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। आप में से कितने लोग हैं जो काफी टाइम से, मतलब एटलीस्ट 1 महीने से ज्यादा हो'ओपोनोपोनो प्रैक्टिस कर रहे हैं, या कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने इम्प्रूवमेंट के लिए? Oh, so we have an architect. So you are an architect, Neeraj? You can't talk. People can't talk in between. Yes, ma'am. I'm an architect. Oh, wonderful, wonderful. So, so it's great that many of you are really looking forward to work on yourself. हम ज्यादातर अपने ऊपर तभी काम करना चाहते हैं या शुरू करते हैं जब हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। जब हम किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं तब हम कोशिश करते हैं पहले दूसरों को ब्लेम करने की, फिर हम कोशिश करते हैं चीजों का कोई अच्छा सॉल्यूशन मिल जाए, फिर अगर आप जिस तरह की प्रॉब्लम में फंसे हो उस हिसाब से लोग अलग अलग रास्ते ढूंढने की कोशिश करते हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी बोलिए, चाहे आप वास्तु बोलिए, चाहे आप, मतलब हर तरह से किसी तरह से आप उस प्रॉब्लम से निकल जाए, मगर एक्चुअली प्रॉब्लम हमने खुद ही शुरू किया है। तो जैसे ही हम अपने उस परसेप्शन को चेंज करते हैं, सबसे बड़ा चेंज आता है, हमारा एनर्जी लेवल चेंज हो जाता है। हमारा एनर्जी लेवल चेंज होता है तो हमारा ऑरा चेंज हो जाता है, और जैसे ही ये चेंज होता है हमारे लाइफ में लोगों के साथ साथ हमारी संगति, हमारे सिचुएशन, सब कुछ चेंज होने लगते हैं। सो लेट्स गेट इनटू इट इन डिटेल। अभी मैं जो प्रेजेंटेशन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ उसमें मैं इन चीजों के बारे में डिस्कस करूंगी। हमारा माइंड का नेचर, हमारा कोर रिलेशनशिप और हमारा इमोशनल स्केल। हम एक सर्टेन इमोशनल स्केल पे काम करते हैं। एंड फर्दर एंड की तरफ मैं डिस्कस करूंगी हो'ओपोनोपोनो ट्राइब और शमन्स के बारे में। तो अगर हम हो'ओपोनोपोनो प्रैक्टिस के बारे में कोई भी चीज हम सीखते हैं, हमें ये बहुत जरूरी है जानना कि ये कौन लोग हैं, ये कहाँ से आया है और ये लोग ऐसे क्यों हैं। मतलब यही मेन रीजन होता है किसी भी कल्चर में हिस्ट्री को पढ़ने के लिए, क्योंकि जब हम किसी के हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, उसके अच्छे बुरे चीजों के बारे में जानते हैं, और हम ये समझ पाते हैं कि वो लोग इतना अच्छा क्यों कर पा रहे हैं और हम कहाँ कोई गैप एरिया छोड़ रहे हैं, या हमारा खुद का रिफ्लेक्शन कैसा होना चाहिए। सबसे पहले माइंड का नेचर या माइंड के लेवल्स। तो क्योंकि आप में से बहुत सारे जने अपने ऊपर काम कर रहे हैं ऑलरेडी, तो माइंड टिपिकली एट साइकोलॉजिकल स्टडीज में जब साइकोलॉजिस्ट माइंड को स्टडी करते हैं और इवन स्पिरिचुअल साइंटिस्ट माइंड को स्टडी करते हैं, माइंड जनरली 3 लेवल में बताया गया है, विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी बाय फ्रूड. Freud was a scientist or a psychological scientist, and he studied human behavior and human mind. और mind के हिसाब से there are different level like conscious mind, जो हम conscious level में सतर्क रहते हुए decision analysis, memory, ये सब चीजें जो करते हैं अपनी लाइफ में। देन हमारा subconscious mind, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अवचेतन माइंड या अवचेतन मन। एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि हम हिंदी या संस्कृत में जो भी चीजें पढ़ते हैं, इंग्लिश में उनका डायरेक्ट वर्ड मीनिंग उस तरह से क्लियरली नहीं आता है। ज्यादातर माइंड जब हम डिस्कस करते हैं तो माइंड का मतलब ब्रेन से लिया जाता है। माइंड इज नॉट एग्जैक्टली ब्रेन, माइंड इज थ्रू आउट योर बॉडी, इन एवरी सेल it exists because it is part of the cell memory. It is passing on from your generation, one generation to another generation. This is one of the reason why in a certain family, एक certain family में कुछ लोगों को डायबिटीज होता है और कुछ लोगों को डायबिटीज नहीं होता है। वो जेनेटिकली किस तरह से जीन्स में वो लर्न्ड बिहेवियर की तरह से पास ऑन हो जाता है।
तो ये सब कुछ हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर रखते हैं। सबकॉन्शियस माइंड जो कि हमारा बेसिक सीट ऑफ टर्ब्यूलेंस होता है। अगर हम अपने नेचर को समझे तो ये हमारा इंट्यूटिव माइंड का नेचर होता है और यही हमारा फेमिनाइन एनर्जी होता है। अगर हम एनर्जी सिस्टम को समझने के लिए कोशिश करें, हमारे एनर्जी ज्यादातर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं। कॉन्शियस माइंड में मैस्कुलिन एनर्जी होते हैं जो ज्यादातर लॉजिकल चीजें, विजनरी चीजें, इन चीजों में हेल्प करती हैं हमें देखने के लिए। आपका गोल कैसा होगा, आप क्या चाहते हैं लाइफ में, आप चाहते हैं कि आप एक मल्टी मिलियनियर बने, तो ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये आपका कॉन्शियस माइंड डिसाइड कर रहा है। उसी तरह से आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका फेमिनाइन एनर्जी है, वो आपको फिर हेल्प करता है उस गोल को अचीव करने के लिए। वो आपको उस तरह की फीलिंग्स देगा, वो आपको डाउट्स भी दे सकता है अगर आपके प्रीवियस इमोशंस उस तरह से लिंक्ड है। वो आपको फियर भी दे सकता है, वो आपको हर तरह का इमोशन दे सकता है। जिस अभी आने वाले स्लाइड्स में आपको मैं इमोशनल स्केल्स के बारे में बताऊंगी, तो वो आपको हर तरह का इमोशन दे सकता है बेस्ड ऑन आवर ओन रिकॉर्ड्स। ज्यादातर हम कोशिश करते हैं हम अच्छे मूड में रहे, और जितना भी हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हैं, हम यही चीजें समझने की कोशिश करते हैं कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड तक कैसे पहुंचे और सबकॉन्शियस माइंड के मेमोरीज को कैसे हील करें। हील करने का मतलब है हम अपनी ही मेमोरी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। टेक्निकली हर इंसान, आई हैव नेवर, मैं अपने इस पूरे जर्नी में कभी किसी बुरे इंसान से नहीं मिली हूँ। मतलब मैं जिससे भी मिली हूँ उन सभी का कहना है कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं, मगर हालात हमारे साथ अच्छे नहीं रहे और लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, मगर हम बहुत अच्छे इंसान हैं। और हम इतने अच्छे इंसान हैं, इस कारण उनका मेन फ्रस्ट्रेशन अच्छाई के साथ हो जाता है कि हम इतने अच्छे इंसान हैं फिर भी हमें सोल्यूशन नहीं मिलता है। तो वो जब भी भगवान के पास भी जाके प्रे करते हैं अपने सोल्यूशन के लिए, दे आर टेक्निकली क्राइंग, वो ज्यादातर रोते हैं भगवान के पास जाके। और ये मैं उनके बारे में नहीं, इवन आई हैव आल्सो डन, मैंने खुद भी ऐसा किया है, एंड दैट्स व्हाई मैं इस एक्सपीरियंस को शेयर कर सकती हूँ। दैट अच्छा होना और अच्छे होने के लिए दिस इज समथिंग, ये हमें कल्चरली सिखाया जाता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हमारे कल्चर में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मगर ये चीज बहुत जरूरी है समझना कि हम जो चाहते हैं और हम कौन हैं, हु आर वी राइट नाउ, और हम क्या चाहते हैं अभी, ये दो चीजें अलग है। सपोज आप चाहते हैं कि आप एक मल्टी मिलियनियर बने, मगर आपके सबकॉन्शियस माइंड का एनर्जी उस चीज को नहीं पोर्ट्रेट कर रहा है, आप वो नहीं दिखा रहे हैं, आपके एनर्जी लेवल पे वो चीज नहीं आ रहा है, तो देयर इज अ क्लैश बिटवीन आप क्या चाहते हैं और आप एक्चुअली में कौन है। और हम एक्चुअली में कौन है ये हम बहुत देर बाद समझ पाते हैं या बहुत देर बाद क्वेश्चन कर पाते हैं। हम कौन होते हैं ये हम ज्यादातर अपने आप को मेजर करते हैं कॉन्शियस माइंड के डिसीजन से। मतलब कॉन्शियसली आप कितने अलर्ट है, आप कितने नॉलेजेबल है, आप कितने विजनरी डिसीजंस लेते हैं, आपको लगता है वही चीजें अच्छी चीजें हैं, और क्योंकि आपने अच्छा किया है इसलिए आपके साथ अच्छा होना चाहिए, विच इज फेयर एनफ, तो बिल्कुल सही है। मगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये डिसाइड करता है कि हम उन अच्छाई को कितना एक्चुअली मानते हैं। सो देयर इज अ गेम चेंजर। हम अच्छे होने के बावजूद भी सबकॉन्शियसली अगर उन अच्छी चीजों को नहीं मान पाते हैं, तो हम अपने परसेप्शन लेवल में, अपने एनर्जी रेडियंसी में, अपने चक्रास के थ्रू उस एनर्जी को एमिट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ट्रेडिशनल सिस्टम में महर्षि लाहिरी के स्क्रिप्ट्स को पढ़ें, महर्षि लाहिरी इज वन ऑफ द वेरी रिनाउंड गुरु हैं वो बाबा जी के संप्रदाय से, और उन्होंने बोला कि चक्रास जो हमारे बॉडी के अंदर 7 चक्रास है, इसके अलावा भी बहुत सारे चक्रास हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर जो 7 चक्रा है वो हमारे एनर्जी लेवल को एमिट कर रहे हैं। जो एनर्जी लेवल हमारे बॉडी एमिट कर रहा है, अगर वो उसी तरह से कर रहा है जिस तरह से उस चक्रा का नेचर है और सबकॉन्शियस माइंड का आइडियल नेचर होना चाहिए,
तब हम बहुत बैलेंस्ड लाइफ मतलब यापन करते हैं। मगर अगर वो उस तरह का रेडियंस एमिट नहीं कर रहा है और हमारा परसेप्शन उस तरह का नहीं है, तो हमारा ऑरा चेंज हो जाता है, हमारा अंडरस्टैंडिंग चेंज हो जाता है, हमारी खुद की आइडेंटिटी की अंडरस्टैंडिंग चेंज हो जाती है, और इसीलिए हम अपने आप को एनफ नहीं फील कर पाते हैं। मतलब हमारा बुद्धि या हमारा मन हमें एक लैक माइंडसेट की तरफ लेके जाता है। लैक माइंडसेट मतलब मेरे पास ज्यादा नहीं है, मेरे पास कमी है, और मेरे पास कमी है इसलिए मुझे इस कमी को पूरा करने के लिए दूसरों की मदद चाहिए। चाहे वो रिलेशनशिप में कमी है, चाहे वो पैसे की कमी है, चाहे वो हेल्थ की कमी है। दिस थॉट प्रोसेस, जो हमारा थॉट प्रोसेस इस चीज को जागृत करता है हमारे अंदर कि हमें मेरे पास कमी है, दिस इज अ रॉन्ग आइडेंटिटी। और ये आता कहाँ से है? ये आता है हमारे अनकॉन्शियस, हमारे पास्ट बिहेवियर से। जब हमने बहुत सारे लाइफ टाइम से जब हम आ रहे हैं, हमारे अंदर डर है बहुत सारे लाइफ टाइम से। हमारे को लोगों ने कैसे ट्रीट किया, हमने लोगों को कैसे ट्रीट किया, और इसी को कर्मा का इफेक्ट बोला जाता है। कर्मा का इफेक्ट एक्चुअली और कुछ नहीं है, हमारा खुद का एनर्जी लेवल है। सो नाउ अब मैं ब्रेन के बारे में बोलना चाहूंगी। अभी मैंने मन के बारे में बोला। मन जो कि हमारे हर सेल में है, हमारे पूरे बॉडी में मन सिर्फ, मन को ज्यादातर लोग हार्ट से सिंबॉलिक में एक्सप्लेन करते हैं, बट मन इज नॉट ओनली देयर इन हार्ट। मन सिर्फ हार्ट में नहीं होता है, मन हर सेल में होता है। हार्ट के सेल में, ब्रेन के सेल में, किडनी के सेल में, इवन लिवर के सेल में। इसीलिए किडनी इज वन ऑफ द प्लेस वेयर हमारे फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी स्टोर होते हैं। So people who get financial insecurity do have lots of things which are related to it. फिर लिवर इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑर्गन जहाँ हमारे एंगर इश्यूज स्टोर्स होते हैं। तो ये सारे इश्यूज कहीं ना कहीं तो निकलेंगे, आपके बॉडी से बाहर नहीं जाते हैं जब तक हम उन पे काम नहीं करते हैं। तो एनर्जी, जो भी नेगेटिव एनर्जी हमारे बॉडी में डिजीज की तरह से दिखाते हैं। मतलब डिजीज होना, इसका मतलब हमारा एनर्जी कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो गया है। तो अब हम बात करते हैं ब्रेन वेव के बारे में। अभी तक एनीथिंग व्हिच यू वुड लाइक टू आस्क और यू वुड लाइक टू क्वेश्चन? Okay, so I will continue. Brain waves, gamma waves, beta waves, alpha waves, theta waves and delta waves की तरह से समझे जाते हैं। ब्रेन वेव्स पर काम बहुत सारे साइंटिस्ट ने किया है, और ब्रेन वेव्स एक बहुत ही एंशिएंट, बहुत ही प्राकृत कॉन्सेप्ट है। ये बहुत सारे कल्चर्स में इसका स्टडी किया गया है। बहुत सारे एंशिएंट कल्चर जैसे कि इजिप्शियन, रोमन और इंडियन कल्चर में तो इसका बहुत इन डेप्थ स्टडी है, ऑलरेडी है। तो जब हम गामा वेव्स के बारे में बात करते हैं, ये वो वेव्स हैं जो हमें फ्लो में लाता है। मतलब ज्यादातर अगर आपने पढ़ा हो कि लोग एक फ्लो में सक्सेस में रहते हैं, उनसे अच्छा काम होता है तो एक के बाद एक अच्छा करते रहते हैं। So generally that is the reason, because the mind, or the not mind, the brain is actually emitting those kind of frequency. Then comes the beta wave. Beta wave is alert consciousness, जो हमें सतर्क consciousness प्रदान करता है, जो भी हम जागरूक अवस्था में फील करते हैं। तो जनरली हम अवेक स्टेट में बीटा वेव में भी जा सकते हैं, गामा वेव में भी जा सकते हैं, एंड इवन अल्फा में भी जाते हैं। दिस इज द रीजन, इसी रीजन के कारण बहुत सारे एक्सपर्ट साइंटिस्ट लाइक आइंस्टाइन और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमेशा सजेस्ट किया है कि काम करते करते, आप अगर कॉर्पोरेट प्रोफेशनल है तो काम करते करते 2 घंटे बाद थोड़ा सा 5 मिनट का, 10 मिनट का थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। ब्रेक इसलिए लेना चाहिए, वो ब्रेक किस तरह का? ब्रेक में आप थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, ब्रेक में थोड़ा सा अपने आप को, अपने बॉडी को रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। तो जब हम इस तरह का किसी भी प्रक्रिया में जाते हैं, हम अपने ब्रेन वेव्स को साइमल्टेनियसली चेंज करने की भी कोशिश करते हैं। और ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज से, if possible to share where the different beliefs are stored. Yes, sure.
सो हम जैसे ही अलग अलग इस तरह का ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं, हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी को पकड़ते हैं. और दिस इज वन ऑफ द रीजन आइंस्टाइन हैज डिस्कवर्ड. अगर आप आइंस्टाइन के बारे में पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि उसने अपनी सारी डिस्कवरीज अल्फा स्टेज में किया है, जो कि लूसिड स्टेज है, जहां वो पूरा सोने की भी अवस्था नहीं है और पूरा जागृत अवस्था भी नहीं है. ये एक मेडिटेटिव स्टेज है जिसे आप तब भी हासिल कर सकते हैं जब आपका पूरा बॉडी फुल्ली रिलैक्स्ड है और आपके दिमाग में कोई थॉट प्रोसेस, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चल रहा है. जनरली हमें लगता है हम आर्ग्यूमेंट दूसरों के साथ करते हैं, मगर टेक्निकली हम आर्ग्यूमेंट सिर्फ अपने साथ करते हैं. So the thinking, there is no thinking which is happening in the alpha stage. That is the point. Your mind is really very active. You have reached or you have touched. हम subconscious level को touch कर चुके होते हैं और हम इस stage में अपने अंदर कोई affirmation डालना चाहते हैं, कोई मंत्र प्रैक्टिस करना चाहते हैं. हमारे लिए वो सबसे ज्यादा effective होता है. नेक्स्ट स्टेज होता है थीटा स्टेज और डेल्टा स्टेज. तो ये कहा जा सकता है कि थीटा स्टेज और डेल्टा स्टेज इफेक्टिव नहीं होता है? बिल्कुल नहीं. थीटा स्टेज और डेल्टा स्टेज भी बहुत इफेक्टिव होता है, मगर इसके इफेक्टिवनेस को एक्सपीरियंस करने के लिए ज्यादातर जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो अपने स्लीप को मैनेज कर पाते हैं. मतलब अगर आप योग निद्रा या स्लीप मेडिटेशन जैसे प्रैक्टिस करते हैं, वो होपोनोपोनो में भी है, तो आप अगर इस तरह के प्रैक्टिसेस को प्रैक्टिस करते हैं तो आपका स्लीप में भी बहुत अच्छा कंट्रोल रहेगा. आपके खुद के बॉडी का, आपके खुद के माइंड का बहुत अच्छा कंट्रोल रहेगा. और इसका बेनिफिट क्या होगा, मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देती हूँ. इसका बेनिफिट यह होगा कि आप अगर कोई ड्रीम भी देख रहे हैं, कोई सपना भी देख रहे हैं, तो आप सतर्क रहते हैं. सतर्क मतलब एकदम कॉन्शियस रहते हैं. ड्रीम में भी आपको पता चलता है कि हाँ ये ड्रीम है, ये रियलिटी नहीं हो रहा है. और आप ड्रीम में भी अपने साथ चेंजेस कर सकते हैं. जितने भी महान स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हुए हैं, जैसे कि आई वुड लाइक टू गिव एन एग्जांपल. अगर आप पढ़ना चाहते हैं इस स्पिरिचुअल साइंटिस्ट के बारे में, आप रिसर्च कर सकते हैं. हिज नेम इज नेवागाडो. नेवागाडो पर मैंने काफी रिसर्च किया है. आई हैव अ यूट्यूब चैनल वेयर आई शेयर the Indian thought process and combine it with Western thought process and Western literature, और हम अपने हिसाब से चीजों को किस तरह से अडॉप्ट कर सकते हैं. There I have tried to share lots of details. So if you are interested, you can check some of the work by Nevagado. And Nevagado have mentioned lots of simple practice जिससे हम डेल्टा फेज में, जो कि स्लीपिंग फेज है, डीप स्लीप फेज है, वहां पे हम बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं. Now I will come to our core relationship. So I was checking in the group sometime back, and someone was writing that people have discussed about our core relationship, which is very very beautiful, because हमारे core relationship हमारा identity बताता है. आपके माता पिता के साथ, आपके भाई बहन के साथ आपके किस तरह के संबंध रहे हैं, अच्छे बुरे, we are no one to judge it, मगर आपको किस तरह का एक्सपीरियंस हुआ, आपको किस तरह से बताया गया कि फैमिली बाउंड्रीज कैसे होती हैं, आपको क्या समझाया गया, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वही आपका वैल्यू सिस्टम बन जाता है, वही आपकी बाउंड्रीज है. और उसी कारण हम, अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसते हैं, दिस इज ओनली रीजन बिकॉज हमें बहुत छोटी उम्र में टॉक्सिसिटी का अंदाजा नहीं होता. हम अपने माँ बाप को खुश करने के लिए या अपने भाई बहन को खुश करने के लिए उस एक सर्टेन बिहेवियर को करना चाहते हैं, क्योंकि हमको लगता है वी हैव टू अर्न लव. वी डोंट हैव टू अर्न लव. यू एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट. आप इस प्लैनेट में हैं, ये आपका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि आपके जैसा कोई नहीं है. यू आर यूनिक बीइंग. आपके जैसा कोई भी नहीं है. ये आपका सबसे बड़ा पोटेंशियल है, यही आपका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है. आप अगर सिर्फ अपने आप को समझते हैं, अपने काम को यूनिक कंट्रीब्यूशन के साथ, जो भी आप कर रहे हैं, बहुत आम चीजें, आप खाना बना रहे हैं, आप इफ यू आर एन आर्किटेक्ट, बिकॉज आई जस्ट सॉ नीरज एंड आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, आप अगर इंटीरियर डिजाइन करते हैं या बिल्डिंग डिजाइन करते हैं, आप अपने क्लाइंट के साथ किस तरह से डील करते हैं, आपका अप्रोच इंटेंशन कैसा है,
यही आपकी लाइफ में मैग्निफिसेंट डिफरेंस लेके आएगा। हम किस तरह के रिलेशनशिप में बाद में लैंड अप करते हैं, इसके लिए लोग जिम्मेदार नहीं होते हैं, हम खुद जिम्मेदार होते हैं। जब हम दूसरों को ब्लेम करते हैं अपनी लाइफ के लिए, we actually develop a mindset जिसको कहा जाता है victims mindset, which is that you spend a lot of energy in cribbing about other people, in cribbing about other things, whereas everything in my vicinity, जो भी मेरे आस पड़ोस में हो रहा है, जो भी मेरे घर के अंदर हो रहा है, चाहे मुझे अच्छा लगता है या बुरा लगता है, मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। और जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ जाते हैं और उससे भागते नहीं हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग सोल्यूशन इसलिए नहीं चाहते हैं कि सोल्यूशन मिल जाए। आई हैव सीन लोग ज्यादातर सोल्यूशन इसलिए चाहते हैं क्योंकि उस प्रॉब्लम से भागना चाहते हैं, किसी तरह से इस प्रॉब्लम से हमें निवारण मिले। तो अगर हम भागे बिना उस प्रॉब्लम का सामना करें मतलब उसको देखें, उसको सिर्फ आंख खोल के भी अगर आप देखेंगे, वो अपने आप धीरे धीरे डाइल्यूट होना शुरू हो जाएगा। एंड हाउ एंड व्हाई आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। हमारे कोर बिलीव्स, जैसा कि मैं बता रही थी, फैमिली के ऊपर काफी डिपेंडेंट होता है। हमारे रिलेशनशिप लोगों के साथ हमें किस तरह से फैमिली ने समझाया मनी का वैल्यू, मनी का इंपॉर्टेंस किस तरह से समझाया गया। मतलब ज्यादातर इंडियन फैमिलीज में बहुत समझाया जाता है कि पैसा बेफिजूल में खर्च नहीं करना चाहिए, पैसा जमा के रखना चाहिए, मतलब जितना हो सके पैसा जमा के रखो, अगर पैसा जम गया तो प्रॉपर्टी खरीदो। मतलब आप देखेंगे आपके पेरेंट्स ने जिस तरह का इन्वेस्टमेंट प्लान किया है, अगर आप उन सर्टेन बैरियर्स को नहीं तोड़ पाते हैं तो आप भी 90% केसेस में आप देखेंगे उन्हीं चीजों को फॉलो करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो उन चीजों को ब्रेक करके नए सिस्टम्स को, नए बिलीफ सिस्टम को अडॉप्ट कर पाते हैं। तो अगर हमें सिखाया जाता है कि पैसा को खर्च करना बहुत महंगा पड़ सकता है, तो हमारे अंदर डर आ जाता है। बहुत छोटे उम्र से हमारे अंदर एक इनसिक्योरिटी आ जाता है कि नहीं नहीं नहीं, जो भी पैसा आता है उसको जमाओ। सो ऑल ऑफ दैट इज समवेयर लिंक्ड विद आवर ओन बैकग्राउंड। तो जब भी आपको टाइम मिलता है, अगली बार जब अपने रिफ्लेक्शन, आप जो भी प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप होपोनोपोनो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, विच इज वंडरफुल, बहुत ही अच्छी बात है। जब आप उस होपोनोपोनो प्रैक्टिस से बाहर निकले, अपना एक छोटा सा डायरी रखें और उसमें आप लिखें आपकी लाइफ में क्या कोर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आप ये मत लिखिए कि आपको क्या अच्छा नहीं लगता है। जब आपको ये पता चलेगा आपके कोर प्रॉब्लम्स, इट्स नॉट गेटिंग बायस टुवर्ड्स द प्रॉब्लम। मतलब कई बार हम अपने इच्छा अनुसार प्रॉब्लम को मॉडिफाई कर देते हैं। अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से समझें, फिर उसके बैकग्राउंड को देखें, अपने बिलीव्स को क्वेश्चन करें, मतलब अपने बिलीव्स को देखना शुरू करें कि आपका बिलीव्स ये कहाँ से आ रहा है। क्या ये आपने बचपन में कहीं सुना था, आपने अपने फ्रेंड से सुना है, आपने अपने टीचर से सीखा है। वी ऑल्सो लर्न अ लॉट फ्रॉम आवर टीचर्स। हम अपने टीचर से स्कूल में जाते हैं। आई रिमेम्बर my maths teacher was very good, but I developed fear in maths. मेरे को maths में बहुत fear आया, क्योंकि मैंने देखा मेरे I come from a very old generation जहाँ पर मैंने black and white TV भी देखा है, so I do not come from a new young generation. So in that generation teacher class में ना scale लेके जाते थे। आजकल तो हम ये नहीं बोला, तो घर पे भी आप ये सोच नहीं सकते हैं। तो टीचर ना क्लास में स्केल लेके जाते थे। तो हमारे मैथ्स के टीचर जो सही से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते थे, उनको स्टिक से ही यूज्ड टू गिव टाइट स्लैप्स। एंड आयरोनिकली इट्स वेरी, बिकॉज वो देखकर मुझे कभी मिला नहीं वो स्टिक, बट मेरे को देखकर ही काफी डर लग गया। एंड दैट्स वन ऑफ द रीजन आई रियलाइज्ड आई एम वेरी, मेरे एक साइकोलॉजिकल फियर डेवलप हो गया मैथ्स के कारण और मैथ्स के ऊपर। And इसका opposite, it's not maths is a problem, it's the opposite. I am very good in physics. I was a very as a science student, I really developed lots of interest in investigating physics, whereas physics में भी maths की बहुत जरूरत है। मगर वो physics का heading आ गया तो मेरा डर उसमें निकल गया, और maths जहां जहां maths का नाम आ जाता था वहां मुझे इतना डर लगता था कि मुझे लगता था अरे मैं ये कर ही नहीं पाऊंगी।
और एक इतना ज्यादा साइकोलॉजिकल फियर आ गया विच आई हैड टू आइडेंटिफाई, मुझे पहचानना पड़ा। तो इसी तरह से आई ट्राइड टू आइडेंटिफाई माय ओन फियर्स विथ मनी, विथ रिलेशनशिप, विथ पीपल, विथ फ्रेंड्स एंड मेनी अदर एस्पेक्ट्स इन लाइफ। सो आप एक ऐसा चेकलिस्ट बनाइए जहां पे आप अपने प्रॉब्लम्स को लिखिए, अपने बिलीव्स को लिखिए, उसके बाद उस बिलीव को चेंज करने के लिए आप क्या करना चाहते हैं। आप कोई एफर्मेशन यूज करना चाहते हैं, आप उस बिलीव को ऑपोजिट जो आप करना चाहते हैं उसके बारे में लिखिए। और एट द एंड जब ये कर लेंगे, ये प्रक्रिया जल्दी नहीं होगी, इसको करते करते आपको कम से कम 1 हफ्ता लगेगा, बिकॉज आपके दिमाग में अचानक से सारी पिछली बातें नहीं आएंगी। सो जब आप ये करेंगे उसके बाद आफ्टर दिस वंस योर डायरी इज कंप्लीट, देन यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर। आप मिरर के सामने खड़े होइए। मिरर इज सेड टू बी द गेट टू सबकॉन्शियस माइंड। अगर आप मिरर के सामने खड़े होकर डरते नहीं हैं तो आप बहुत ब्रेव हैं। आई एम नॉट सेइंग कि मिरर के सामने खड़े होकर आप कितना खूबसूरत अपने आप को महसूस करते हैं, कि कितना खूबसूरत मेकअप कर पाते हैं, ऑल द वंडरफुल लेडीज इन द ग्रुप, बट मिरर इज द गेट टू सबकॉन्शियस माइंड। ये हमारा अवचेतन मन में घुसने का एक गेट होता है। तो जब आप मिरर के सामने खड़े होकर अपने मनी इश्यूज, अपने लव इश्यूज, अपने सेल्फ आइडेंटिटी, सेल्फ एस्टीम या इवन स्पिरिचुअलिटी, क्रिएटिविटी, कोई भी एस्पेक्ट जो भी आपका स्ट्रगल एरियाज है, उनके बारे में अपने आप से बात करना शुरू करेंगे, आपको खुद को पता चलेगा आप अपने आप से कितना कंफर्टेबल हैं कि नहीं है कंफर्टेबल उस इश्यूज के बारे में। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो ऑटोमेटिकली आपका फेस, आपका बॉडी एक सर्टेन रिस्पॉन्स देगा। What I'm trying to say is to be observant about every detail which the mirror is reflecting. आपका मिरर आपको एक एक चीज के बारे में बताएगा। धीरे धीरे आप जब जो भी एफर्मेशन या जो भी आप अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करने के लिए करेंगे, धीरे धीरे आपको मिरर दिखाएगा कि आप कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। धीरे धीरे आपको मिरर डिटेल्स बताना शुरू करेगा कि how confident you have changed to that particular belief. तो आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप बताओ, आपको किसी गाइड या किसी अदर लीडर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी जो आपको बताए कि आप कितना अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको खुद को देख के पता चलेगा अपनी कमियों के बारे में, जब आप क्वेश्चन करेंगे कि वो कमियां कितनी दूर हो चुकी हैं और आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। So now it's time to see the emotional scale. हमारा जो इमोशनल स्केल होता है वो काफी लोगों ने स्टडी किया है, और अगर आप अब्राहम हिक्स को पढ़ते हैं, who is an American spiritual motivational leader, and she talks and work a lot on emotional scale and balancing energy. तो हमें पता चलेगा हमारी लोअर एनर्जीज, फियर है, ग्रीफ है, शेम है, ये सब हमारी लोअर एनर्जी है। बोर्डम, I come from creative industry and many wonderful creative people जिनके साथ में मैं काम करती हूँ, थोड़ी देर बाद काफी बार बोलते हैं कि हम बोर हो चुके हैं, हमें कुछ नया चाहिए, तो फटाफट हमें मूड चेंज करना है। So they feel the lack of the alignment with the higher energy. So all of that is the sign कि हमें अपने आप पे काम करना है। जब भी हमें सतर्क रह के अपनी एनर्जीज और अपने इमोशन के बारे में पता चलता है, दे आर एक्चुअली फीडबैक। वो हमें फीडबैक दे रहे हैं हमारे बारे में। अगर आप ऑन एन एवरेज अपने आप को ऑब्जर्व करें, मॉर्निंग में अगर आप 2 बार होओपोनोपोनो प्रैक्टिस करते हैं मॉर्निंग में या टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे, आपका दिन में, पूरे दिन में मूड कैसा रहा, आप कितने पैशनेट रहे, आप कितने एंथुसियास्टिक रहे, आप किस तरह से आपने लोगों की क्वेरीज हैंडल की, किस तरह से आपने उन इश्यूज को हैंडल किया जो आपको अच्छा नहीं लग रहा था, किस तरह से उन लोगों को हैंडल किया जो लोग आपको किसी तरह से फंसाना चाह रहे थे। क्या इन ऑल दीज कंडीशंस यू वर रियली पैशनेट, लविंग, काइंड एंड जॉयस? then you are moving on the right track. You do not feel lack, you do not feel any kind of injustment towards yourself. आपने उन नेगेटिव एनर्जी को काफी हद तक अपने अंदर से क्लियर कर लिया।
और ये भी हो सकता है कि आप अच्छा मूड में तो रहे मगर कुछ भी अचानक से हुआ और आपका मूड चेंज हो गया और यू आर नाउ नॉट इन दैट गुड मूड एंड यू गॉट डिसअपॉइंटेड. बट द इंटेलिजेंस और द इमोशनल इंटेलिजेंस इज एक्चुअली कि आपको डिसअपॉइंटमेंट हुआ, दैट्स नॉट अ बैड पॉइंट. नीचे गिरना बुरी बात नहीं है मगर सतर्क रहना होगा. आप जैसे ही गिरते हैं क्या आप सतर्क रह के अपने आप को पहचान पाते हैं, अपने आप को उठा पाते हैं और फिर से वापस कोशिश करते हैं? दैट इज इंपॉर्टेंट. आप कितना सतर्क रह पाते हैं, आप कितना परसिस्टेंट है अपनी प्रैक्टिस के साथ, दैट इज द गेम चेंजर. So now I'm getting into Kahuna tribes and why I'm trying to talk about it. ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने जब भी कोई प्रैक्टिस अडॉप्ट किया है मैंने कोशिश किया है ये समझने का कि ये लोग है कौन, और मैंने उन लोगों के बारे में भी काफी समझने की कोशिश की है. एंड आई विल गिव यू द रीजन. अगर आप कोई भी योगिक प्रैक्टिस अडॉप्ट करते हैं, मतलब सपोज करो आपके कोई गुरु हैं और आपके गुरु ने आपको मंत्र दान दिया है या मंत्र आप प्रैक्टिस करते हैं, तो सिर्फ वो मंत्र प्रैक्टिस करना आपके एनलाइटमेंट का पाथ जरूर हो सकता है मगर इसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा जरूरी है चीज समझना वो है कि हम अपने लाइफस्टाइल को कैसे चेंज कर रहे हैं, हम अपने पूरी जीवन शैली को उसके साथ साथ किस तरह से अडॉप्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. दैट इज द गेम चेंजर फॉर एनी काइंड ऑफ प्रैक्टिस. क्योंकि कोई भी प्रैक्टिस गलत नहीं होता है, कोई भी प्रैक्टिस इनएफेक्टिव नहीं होता है, और खासकर इस तरह के प्रैक्टिस जैसे कि हो'ओपोनोपोनो जो कि बहुत एंशिएंट और बहुत ही एसोटेरिक साइंस में माने जाते हैं. अगर आप एसोटेरिक कल्चर को पढ़ें जैसे कि इजिप्शियन, जैसे कि एज़्टेक सिविलाइजेशन जो कि माया इनका सिविलाइजेशन है, इन सभी के पास कुछ सीक्रेट नॉलेज रहे थे. उसी तरह से इंडियंस के पास जो हमारा सनातन धर्म है, सनातन धर्म में भी बहुत सारे से सीक्रेट नॉलेज रहे हैं जो कि गुरु से शिष्य के पास जाता है ज्यादातर, क्योंकि सबको नहीं दिया जाता है. देयर इज अ रीजन. वो ये सब देखा जाता है कि आपका बॉडी कितना प्रिपेयर है, आपका नर्वस सिस्टम कितना प्रिपेयर है उन चीजों को ग्रहण करने के लिए, और आप इमोशनली कितने एनलाइटेंड है उन चीजों को ग्रहण करने के लिए, तब आपको वो ज्ञान मिलता है. तो उसी तरह से हम अगर सिर्फ बोलें कि हो'ओपोनोपोनो इज ओनली अ प्रेयर प्रैक्टिस जिसमें कि ये 4 लाइंस हैं और जिसमें और भी कुछ प्रेयर्स हैं व्हिच आई हैव सीन श्रीनिवासन हैज ब्यूटीफुली शेयर्ड ऑल अक्रॉस इन द ग्रुप, तो सिर्फ वही है, ये हमें कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं दे पाता है. हमें कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए ये समझना होगा कि कहूना ट्राइब्स है कौन. तो ये कहूना ट्राइब्स एक्चुअली हवाईयन रीजन में इनको मिस्टिक हीलर्स की तरह माना जाता है, और ये बहुत ही वाइज विजार्ड लोग हैं और ये बहुत नेचर के बहुत करीब है, और ये ज्यादातर शमन्स है. शमन्स कौन होते हैं, आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगी. जैसे कि इंडियन सिस्टम अर्थात इंडियन योगिक प्रैक्टिस में आपने शायद पढ़ा होगा, जैसे कि इंडियन सिस्टम में होता है ब्रह्मचर्य जहाँ पे हम बचपन में रहते हैं, हमें एक सर्टेन रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना होता है जिससे हम अपने बॉडी में ओजस डेवलप कर सके, मतलब तेज डेवलप कर सके, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मैन और वुमेन. आप ज्यादातर ओजस मतलब तेज, वो ज्यादातर मैन के लिए कहा जाता है, मगर वुमेन को भी वो पूरा अधिकार और वो पूरे राइट्स है कि आप वो डेवलप करें. सो ब्रह्मचर्य, देन हम गृहस्थ में घुसते हैं, एंड देन हम वानप्रस्थ. तो जो वो वानप्रस्थ का स्टेज होता है जहां हम गृहस्थ चीजों को छोड़ देते हैं. गृहस्थ चीजों को छोड़ देने का मतलब है कि अब आप घर के उन झमेलों में, घर के उन इश्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं. इसका एक मतलब होता है, जनरली हम देखते हैं सांसारिक लोग कौन होते हैं. सांसारिक लोग, देयर आर 2 काइंड ऑफ पीपल. एक होते हैं सांसारिक जो संसार में रहते हैं, मतलब जो शादी करते हैं, घर परिवार होता है, उनके रिलेटिव्स होते हैं, वो समाज के सारे नियम कानून मानते हैं, एक सामाजिक व्यवस्था को मानते हैं. दूसरे लोग होते हैं सन्यासी.
सन्यासी वो लोग जो कि अपने आप को ही तराश रहे हैं, उनको पता चल गया है, उनकी लाइफ का मकसद है कि दे हैव टू वर्क ऑन देमसेल्फ। सो सांसारिक का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप सिर्फ संसार में हैं। सांसारिक का मतलब ये भी है कि आप अपने पास्ट पैटर्न्स को ब्रेक नहीं कर रहे हैं। सांसारिक मतलब एक साइक्लिक प्रोसेस। आप अगर एक साइक्लिक प्रोसेस में लगे हुए हैं, मतलब आपके पास्ट जनरेशन से, आपके एंसेस्टर से, अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू ट्रेडिशन में, खैर हिंदू नहीं बाकी ट्रेडिशंस में भी माना जाता है, देयर आर थिंग्स लाइक एंसेस्ट्रल कर्स। अगर आपने कभी एस्ट्रोलॉजी का कुछ पढ़ा हो तो आपने देखा होगा सैटर्न के या राहु के टाइम में कैन द पर्टिकुलर पर्सन गेट्स इनटू एंसेस्ट्रल कर्स। तो ये एंसेस्ट्रल कर्स कुछ ऐसा कोई अनसाइंटिफिक चीज नहीं है। एंसेस्ट्रल कर्स इज एक्चुअली द नेगेटिव एनर्जी which we carry from our ancestor. And why it happened? Because we are that energy. For a certain life we were that energy. So अगर आप योगी परमहंस को पढ़ें तो उनका कहना है अगर आप इस लाइफ टाइम में खुश नहीं हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि अगले लाइफ टाइम में आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो एनर्जी अभी है अगर आप उसको इम्प्रूव करने पे काम नहीं करते हैं, आप यही एनर्जी लेके नेक्स्ट लाइफ टाइम में जाएंगे। और इसी को कहा जाता है सांसारिक, जो आप उसी पैटर्न को ब्रेक करने की कोई कोशिश नहीं करते हैं। वंडरफुली आई कंसिडर ऑल ऑफ यू एज अ ग्रेट बीइंग जो अपने आप पे काम कर रहे हैं, जो सांसारिक पैटर्न को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कितने सक्सेसफुल हुए हैं नहीं हुए हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर कोशिश करते रहना, परसिस्टेंट रहना इज द गेम चेंजर एक्चुअली। सो ये समझने की बहुत जरूरी है कि जो कहूना ट्राइब्स है ये शमन होते हैं। शमन जिनको मैं समझाने की कोशिश कर रही थी, ये वानप्रस्थ वाले लोग होते हैं जो कि सांसारिक पैटर्न को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। प्लस ये बहुत नेचर के बहुत नजदीक होते हैं, इनको पेड़ों का, पत्तों का बहुत ज्ञान होता है, इनको अपने बॉडी सिस्टम का बहुत ज्ञान होता है। ज्ञान मतलब सिर्फ मेडिकल नॉलेज नहीं, ज्ञान मतलब खुद का ज्ञान कि मेरा बॉडी अभी इस वक्त इस तरह से बिहेव कर रहा है, सो मुझे ये करना चाहिए। हमारा ट्रीटमेंट इज बेस्ड ऑन हाउ माय बॉडी एंड माइंड इज बिहेविंग। सो ऑल ऑफ दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये लोग इस तरह से ट्रेंड है, कल्चरली इस तरह से ट्रेंड है। एंड देन वी टॉक अबाउट दोज वंडरफुल 4 लाइन्स which are magical lines, and we learn these things that Ho'oponopono really helps to break the past barriers or the ancestral linkage of the energy, because हम अपने एनर्जी को इम्प्रूव करने पर काम करते हैं, हम वो डिवाइन लाइट को अपने अंदर अलाउ करते हैं लाने के लिए। So I believe we all know about Dr. Hewlett's practice and how Dr. Hewlett really changed the life of the criminals without even उनसे पर्सनली मिले बिना उन्होंने किस तरह से उनका लाइफ पूरा चेंज कर दिया। He is a life changing example। उसी तरह से these two wonderful people जिनका नाम मैंने स्लाइड में लिखा हुआ है, ये इनके कारण हो'oponopono का प्रैक्टिस वेस्टर्न सोसाइटी में इंट्रोड्यूस हुआ, अमेरिकन वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस हुआ, यूरोपियन वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस हुआ, एंड बिकॉज ऑफ देम the practice got really recognized in many other areas, in many other parts of the world. So here I am trying to share the Kohona tribes generally believe in a certain kind of approach। ये एक lifestyle approach है, मैं जो बार बार बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हम सिर्फ एक प्रेयर से, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ सिर्फ प्रेयर से चेंज हो जाएगा, हाँ चेंज आएगा, मगर अगर आप बहुत अच्छा परिवर्तन चाहते हैं तो आपको सतर्क, कॉन्शियस रहते हुए, अलर्ट रहते हुए, परसिस्टेंटली अपनी एक एक थॉट पैटर्न में काम करते रहना होगा। जब भी आप सतर्क कोई काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ यू हैव टू सी हाउ यू आर अडॉप्टिंग इट। सो दीज आर द बिलीफ सिस्टम। जैसे हमारे अलग अलग समाज में एक बिलीफ सिस्टम होते हैं, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप अपने रूटीन में उन बिलीव्स को कितना मानते हैं?
जैसे ही आप उनको मानेंगे आपके अंदर का स्केर्सिटी दूर हो जाएगा, क्योंकि स्केर्सिटी इज द लैक ऑफ डिविनिटी इनसाइड. So now I'm trying to talk about the food. मतलब मेरा कहने का ये इम्पोर्टेंट मैसेज है कि सिर्फ प्रेयर नहीं, आप किस तरह का फूड खाते हैं, आपका भोजन किस तरह का है, आपका भोजन कितना सात्विक है, वो भी आपके लाइफ के मैनिफेस्टेशन में बहुत चेंजेस लाता है. मतलब अगर आपका बॉडी सात्विक भोजन नहीं करता, आई एम नॉट ट्राइंग टू से आप सात्विक भोजन करें, अगर आपका बॉडी किसी तरह का राजसिक फूड को अलाउ करता है, दैट्स परफेक्टली फाइन. बट व्हाट मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, मैं ये बोलना चाह रही हूँ, अगर आप सात्विक भोजन कर रहे हैं तो आपका बॉडी ज्यादा टाइम नहीं लगाता है उसको डाइजेस्ट करने में, आपका बॉडी ज्यादा एनर्जी नहीं लगाता है खाने के पीछे या खाने को डाइजेस्ट करने का, और अपना आप एनर्जी हायर थिंग्स पर, हायर प्रैक्टिसेस पर लगा सकते हैं. एंड दिस इज द ओनली रीजन the yogis used to have a certain kind of diet plan, and this is the only reason you will find sorry, you will find the Hawaiians had a certain kind of food pattern. They appreciate fresh fruits, they appreciate freshly cooked food. आप कितना टाइम पहले खाना बनाते हैं, all of this is very very critical. The next important thing which I would like to share, and I believe I am towards the end of the presentation now, and this is about blue solar water. आपने जरूर सुना होगा blue solar water के बारे में. तो blue solar water हो'oponopono का बहुत ही interesting और miraculous concept है. And generally अगर आप emotional scale को आपने याद रखा होगा तो हर emotion का एक color होता है. And my friend who is an architect in the group right now, he will be more happy to explain that every color has a certain energy. हर color का एक energy होता है. जैसे red color actually lower energy को denote करता है, and इसी कारण से red color is a color for the root chakra. The root chakra, which is symbolic to the unconscious state of mind. The lower world, हमारा जैसे हिंदू शास्त्र में या सनातन धर्म में कहा जाता है कि हम जिस भूलोक में हैं, भूलोक मतलब अर्थ में हैं, अगर आपने गीता, भगवत गीता पढ़ा है तो उसमें मेंशन है कि हमारे नीचे भी 7 लोक है और हमारे ऊपर भी 7 लोक है. और ये लोकास या डायमेंशन इज नथिंग एल्स बट हमारा खुद का माइंड. हमारा खुद का माइंड नीचे के स्टेज में जाता है, हमारा खुद का माइंड ही जब डेवलप हो जाता है, प्रोसेस हो जाता है, वो हायर कॉन्शियस लेवल पे जाता है. तो ब्लू लाइट और वायलेट लाइट डिवाइन लाइट से कंपेयर किया जाता है इनको, और ये बहुत हाई एनर्जी लाइट होते हैं. ब्लू लाइट ज्यादातर थ्रोट चक्रा पर इफेक्ट करता है और थर्ड आई पर इफेक्ट करता है. और क्योंकि इस प्रैक्टिस में हम पानी लेते हैं, जो भी आप पानी पीते हैं वो पानी आप लेते हैं, और ब्लू कलर का कांच का बॉटल में पानी भरकर हम बाहर धूप में 15 से आधे घंटे तक धूप में उसका एक्सपोजर देते हैं. अर्ली मॉर्निंग में अगर आप करते हैं तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग सोलर एनर्जी इज सेड टू बी द मोस्ट इफेक्टिव एनर्जी. एंड सोलर एनर्जी एक ऐसा एनर्जी है, अगर आप देखें और आप पढ़े, यही लाइफ चेंजिंग एनर्जी, इट्स द मोस्ट पावरफुल एनर्जी. सोलर एनर्जी से ही हमारा सोलर प्लेक्सस जो कि मणिपुरा चक्रा है वो एक्टिवेट होता है, और इसी के कारण हमारा सेल्फ एस्टीम, हमारे जितने भी इश्यूज होते हैं सेल्फ आइडेंटिटी से रिलेटेड, पावर से रिलेटेड, वो लाइफ में रिजॉल्व होते हैं. तो दिस पर्टिकुलर वाटर, इस पानी को जब हम मंत्रा के साथ मतलब जब आपने रखा वहां पे बाहर, उसके बाद आप मंत्र जो 4 लाइन्स है हो'oponopono के, आप उसको चैंट करते हुए, यू कीप ऑन चैंटिंग, यू कीप इट देयर, आप बाहर रखें धूप में. उसके बाद फिर से पीने से पहले आप फिर से चैंटिंग करें, और ये वाला पानी पूरे दिन आप इसी बॉटल से पानी पिए. You will find you are now changing the problem situation.
आप अपनी लाइफ के इश्यूज को सॉल्व करना शुरू कर देंगे. कई बार एज प्रैक्टिशनर हम बहुत हाउ पर जाते हैं, हाउ यू विल रिजॉल्व इट. You just have the faith, just try to have the faith. It works like miracle and life changing things for people. अगर आपको वो 4 लाइन प्रेयर ज्यादा हेल्प नहीं कर रहा है, तो उन 4 लाइन के साथ आप ये प्रेयर प्रैक्टिस के साथ ये बॉटल में पानी रखकर फिर आधा घंटा बाहर धूप में एक्सपोजर दीजिए और फिर वो पानी पिए. You will find your energy system will really improve. So my humble request to all of you right now is अपने आप से क्वेश्चन पूछे. सिर्फ आप प्रेयर करते हैं वो बहुत खूबसूरत चीज है, बहुत ही बढ़िया चीज है, मगर प्रेयर का एक्चुअल मीनिंग है आपके अंदर का सारा डर निकल गया है और आप कन्विंस्ड है कि आपका जो भी डिजायर था वो फुलफिल्ड हो गया है. मतलब अगर आप विवेकानंद के स्पीचेस सुने कि विवेकानंद वाज द स्टूडेंट ऑफ रामकृष्ण परमहंस एंड ही मेंशन्ड इन वन ऑफ द इंसिडेंट्स कि प्रेयर कैसे करना चाहिए. तो प्रेयर ऐसे, उनका कहना है कि प्रेयर ऐसे करना चाहिए जहां हमें भगवान से भीख नहीं मांगना है, हमें भगवान को थैंक्स बोलना है कि हमारे पास वो ऑलरेडी आ गया है और हमें कन्विंस होना है. हम एनर्जी लेवल पर जैसे ही कन्विंस हो जाएंगे कि हमारे पास वो ऑलरेडी चेंज आ चुका है, तो हम अपनी लाइफ में चेंजेस खींच कर लेके आते हैं. आई विल गिव यू अ साइंटिफिक रीजन फॉर दैट. दिस इज माय लास्ट स्लाइड एक्चुअली. So I will give you a scientific reason for that. This particular philosophy of prayer is the basis of quantum physics. यही बेसिस है क्वांटम फिजिक्स का, इसी से आप अपने एनर्जी को चेंज कर रहे हैं. सो अगर आप आइंस्टाइन को पढ़ें, आइंस्टाइन ने काफी जगह बोला है कि जिस माइंड से आप प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं, आप उस माइंड से प्रॉब्लम को कभी भी रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं. आपको एक अलग माइंड लेना पड़ेगा. तो जितने भी लोग इंडियन फिलॉसफी और इंडियन बिलीफ सिस्टम में गणपति को मानते हैं, that's one of the reason why Ganpati is worshipped. I will get into that. That's a very detailed subject. But what is very important to understand is that जब हम वो प्रेयर कर रहे हैं, हम एनर्जी सिस्टम को अगर चेंज नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम वो पुराने ही स्टेट में हैं, तो हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है. हम नए एनर्जी सिस्टम में जाकर अगर वो थैंक्स रिक्वेस्ट डालते हैं, then we have made a shift in our energy level, and this is the basis of the quantum physics. Quantum physics के अनुसार आप किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, तो आपको उस सिचुएशन को चेंज करने के लिए नेक्स्ट एनर्जी लेवल पर आपके एटॉमिक सिस्टम को मूव करना होगा. मतलब आपके सेलुलर लेवल पर एनर्जी अब चेंज होना पड़ेगा. तो जैसे ही आप वो चेंजेस लाएंगे, आपके प्रॉब्लम सिचुएशन जो अब पास्ट हो चुका है, आपका प्रॉब्लम सिस्टम जो प्रेजेंट में है, उसको आपको पास्ट बनाना पड़ेगा कि वो हो चुका है रिजॉल्व. आपको ये मानना पड़ेगा कि वो हो चुका है रिजॉल्व. तो ये चीज करने के लिए आपको कॉन्स्टेंटली रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा. आपको पूछते रहना पड़ेगा कि मेरा मॉर्निंग रिचुअल क्या है, मॉर्निंग में आप क्या करते हैं, मॉर्निंग में उठ के आप फर्स्ट थिंग क्या करते हैं, फर्स्ट थॉट आपका कैसा आता है. आप मॉर्निंग में उठते ही क्या मोबाइल उठाते हैं, मॉर्निंग में उठते ही पहले क्या करते हैं. ऑल ऑफ दैट इज रिमार्केबल शिफ्ट टू योर एनर्जी लेवल. क्योंकि मॉर्निंग में उठते ही जो पहला 15 मिनट्स का ब्रैकेट रहता है, उस वक्त आपका माइंड बहुत हद तक थीटा फेज में रहता है. इसीलिए ज्यादातर प्रैक्टिशनर मॉर्निंग में जैसे ही आंख खुलते हैं, they get into a meditative practice then and there only, if they have to make any request to the superconscious state. Next, आपका मॉर्निंग रिचुअल के बाद आपका कोई ब्रीदिंग प्रैक्टिस है, आप योगा करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, आप नेचर में कितना टाइम बिताते हैं, घास में आप नंगे पैर घूमते हैं, जमीन में आप नंगे पैर घूमते हैं, जमीन पे आप बैठ सकते हैं,
मतलब I will really very surprised to share that I met some young group of people, very young school goers, and they are like in 6th or 7th standard, and I invited them at my place. And because there were lots of them, I thought it will be very convenient, उनके लिए अच्छा रहेगा अगर वो नीचे बैठ जाएंगे, मगर वो लेट गए, वो बैठ नहीं पाए, क्योंकि वो डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हैं, वो नीचे बैठ के खाना भी नहीं खाते हैं, सोफा पे बैठते हैं, तो वो नीचे बैठने का उनका हैबिट ही नहीं है। स्कूल में भी जब जाते थे, अभी तो स्कूल भी नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस होता है, तो वो नीचे ही नहीं बैठ पाए। सो इट इज अ वेरी कंसर्न्ड एरिया कि आप नीचे बैठ पाते हैं। ऑल ऑफ थिंग्स आर वेरी बेसिक, मगर आपकी लाइफ में बहुत इंक्रीमेंटल शिफ्ट लाएगा। व्हाट काइंड ऑफ मेडिटेशन, आप किस तरह का मेडिटेशन करते हैं, किस तरह का खाना खाते हैं, आपका मेंटल डाइट क्या है, आप कितना टीवी देखते हैं, आप ज्यादातर एकता कपूर के सीरियल्स पसंद करते हैं, आप नेटफ्लिक्स देखते हैं, ऑल ऑफ दैट इज एक्चुअली गिविंग फीडबैक टू योर सबकॉन्शियस माइंड। आप अपने माइंड में फीडबैक दे रहे हैं, आप अपने सिस्टम को एनर्जी से लोड कर रहे हैं। आप किस तरह की बुक्स पढ़ते हैं, आप नॉर्मली किस तरह के लोगों से बातचीत करते हैं, ज्यादातर गॉसिप में इन्वॉल्व होते हैं, क्या अपने आप को बिल्कुल कट ऑफ रखते हैं, अपने एनर्जी सिस्टम को प्रिजर्व करके रखते हैं कि आपको इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना है, आप कितने सतर्क हैं। And towards the end, this is a life-changing thing which I have really seen and experienced evidence in my life. What is the quality of self-talk? आपके अंदर जब आप बातचीत करते हैं, because in this group I know Srinivas and my dear friend who is an architect. You will find the architects do talk a lot to themselves. जितने भी creative लोग होते हैं वो अपने आप से बहुत बात करते हैं। ऐसा नहीं कि बाकी लोग बात नहीं करते हैं, बाकी लोग भी बात करते हैं। तो अगली बार जब आप अपने आप से बात करें तो देखिए आप किस तरह का बात कर रहे हैं। क्या आप अपने आप को कोस रहे हैं, क्या आप अपने बारे में अच्छा बोल रहे हैं, क्या आप बोल रहे हैं कि नहीं ये चीज तो मैं कर ही लूंगी, या आप अपने आप को बोल रहे हैं कि यहाँ मैं फंस ही जाऊंगी। वही आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बात का जवाब दे रहा है। तो आप देखिए आप किस तरह से बात कर रहे हैं। दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस फॉर फर्दर practicing affirmation, practicing mantras, practicing the Ho'oponopono practice accordingly. And towards the end, what is your bedtime ritual? आप bedtime सोने से पहले आप क्या करते हैं? आप टीवी देख के, न्यूज देख के सोते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप फोन पे लगे रहते हैं या चैटिंग करते हैं। All of that is actually your habits. So आपका लाइफ में चेंज करने के लिए एक छोटा सा हैबिट ही काफी है, और वो हैबिट आपको सतर्क रह के ही चेंज करना पड़ेगा। सो दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू सी योरसेल्फ एंड योर बॉडी एंड योर माइंड, कैसे कैसे वो चल रहा है, आपको क्या रास्ता दिखा रहा है। जब आप ऐसा शुरू करेंगे ना तो आपको अपना इंट्यूशन का पावर पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि आपको अंदर से एक शक्ति मिल रही है जो आपको गाइड कर रही है। And that will be really very fulfilling. So with this, I finish my presentation, and I just wish all the best for each and every one of you, that you really shine with the divine light and spread the divine light. आप जिससे भी मिले अपना best day. May you really experience the divine light within you and share your best with the others. So I would like to mention here the same 4 lines. I'm sorry, please forgive me, I love you, and I thank you. Generally हम बात करते हैं जब I am sorry, please forgive me. Actually these were added as a part of European practice to really see कि हम अपने guilt को, अपने shame को कितना दूर कर सके। I have seen and met many people जो सिर्फ 2 लाइन बोलते हैं, I love you and I thank you. I love you to my own inner child who is the subconscious mind. I love it to the core, and I thank the superconscious state that I have created the desire shift in my life, and you make that desire shift. Thank you so much for your time. Thank you so much for this wonderful experience. I really congratulate you that you have made the shift. आपने अपनी लाइफ में वो परिवर्तन कर लिया है,
आप आज से ही वो नए सेल्फ में हैं। आप कल परसों आपको वेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप आज से ही अभी से ही चेंज हो चुके हैं। Have a wonderful life and I congratulate you for your new self. Thank you so much. I request all of you to ask questions. If you have any doubts, need any clarification, please feel free to ask questions. You can unmute yourself and ask, or you can mention in the chat so that Anuradha madam will clarify your doubts. अनुराधा जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से होपोनोपोनो समझाया और मैं काफी सालों से होपोनोपोनो सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, लेकिन बहुत सी चीजें क्लैरिफाई नहीं हो रही है जो श्रीनिवास जी को कुछ वीक से मैं सुन रहा हूँ तो हो रही है। तो आज मैं आपको एक पूछना चाहूंगा कि ये जो 4 लाइंस है वो करनी है कि हम सिर्फ आई लव यू या थैंक यू कहने से भी वो हो सकता है? It gives the same effect. Okay, wonderful. So, first of all, नीरज जी, ये मेरा परसेप्शन, मैं आपको अपने परसेप्शन, मुझे लगा कि आप कोई यंग इंडिविजुअल है. You are a very experienced, highly knowledgeable being, and I'm so thankful that you gave me this opportunity to answer you back. आपको आंसर देने का आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं सोच रही थी आप बहुत यंग आर्किटेक्ट है. मैं यंग ही हूँ मैडम. I'm just 18 only. Thank you very much. Lovely. That's so wonderful. Okay, so ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है ये बहुत बहुत क्रिटिकल एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं अपना एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगी, इसका आंसर देना चाहूंगी. मैं इंट्रोड्यूस हुई थी होपोनोपोनो से 2014 में, एंड मैं एक बहुत ही ट्रेडिशनल सिस्टम से आ रही थी. मतलब मेरे को बचपन से ही भगवत गीता इंट्रोड्यूस करवाया गया, और मैं अद्वैता वेदांता और इन सब चीजों में काफी इंट्रोड्यूस हुई. तो मैं बहुत कॉम्प्लेक्स, जैसे बाकी लोग बहुत कॉम्प्लेक्स समझते थे, इस तरह के सिस्टम से आ रही थी. कंपेयर टू दैट कॉम्प्लेक्स सिस्टम, जब मैं ये 4 लाइन के सिस्टम में गई, जो कि बहुत ही सिंपल प्रेयर है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, मेरा फर्स्ट रिएक्शन था ये तो बहुत सिंपल है. मतलब मेरा माइंड ने इमीडिएटली बोला ये तो बहुत सिंपल है, पता नहीं काम करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि अब तक बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें हैंडल कर रही थी. इतना सिंपल चीजें काम भी करती है. मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि रोज आप 50 सीढ़ियां चढ़े और उतरे, आपका लाइफ बदल जाएगा, आपका लाइफ बदलेगा, मगर आपका बिलीफ सब कुछ है. तो I had lots of doubt when I started. I thought it's a very simple thing and ये काम करेगा कि नहीं काम करेगा. But then because I was into, मैं एक stage of mind में थी जहाँ पे बहुत कुछ, इंसान जब परेशान होता है तब या तो स्पिरिचुअलिटी के पास जाता है, या तो तब जाता है जब वो बहुत क्यूरियस होता है. तो मैंने बहुत सी चीजों को एक्सप्लोर करने की कोशिश की, और इन एक्सप्लोरेशन में मैं इस नतीजे पर पहुंची कि आप खुद के अंदर कितना सुकून जनरेट कर पाते हैं. हर प्रैक्टिस आपको इसी तरफ के रास्ते में लेके जाएगा. आप अच्छा कर रहे हैं अपना प्रैक्टिस, कि आप अपना प्रैक्टिस अच्छा नहीं कर रहे हैं, इसका आपको कैसे इंडिकेशन पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि मैं अच्छा प्रैक्टिस कर रही हूँ? अच्छा प्रैक्टिस करने का मतलब है कि मैं अपने अंदर एक तरह का पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करने में बहुत सक्सेसफुल हो चुकी हूँ. अच्छा प्रैक्टिस करने का मतलब है अब मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा इंट्यूशन लेवल इतना स्ट्रांग हो चुका है कि मैं खुद अपने आप को समझ पा रही हूँ कि मैं किस डायरेक्शन में जा रही हूँ, मैं अच्छा कर रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ. आपकी एक अंतरात्मा की आवाज होती है, आपकी आवाज क्लियर होने लगेगी, आपकी आवाज क्लियर होने लगेगी. अब जो आपने मुझसे पूछा था कि आप 4 लाइन से ही कर पाएंगे कि 2 लाइन ही काफी होगा, तो मैं अपना एग्जांपल दूंगी. मैंने जब शुरू किया तो मैंने सिर्फ 4 लाइन से ही शुरू किया था. धीरे धीरे मुझे बाकी जैसा
श्रीनिवास जी शेयर कर रहे हैं, मैंने बाकी चीजें भी की। फिर मैं एक स्टेज में आई। अब आप मुझसे पूछे कि वो स्टेज मैं होपोनोपोनो से आई कि नॉर्मल मैं मेडिटेशन करती थी उससे आई, ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा, मगर मैं एक स्टेज में पहुंची जहां आई वाज बी रियली एबल टू एक्सपीरियंस दैट पीस। और एक मैं फ्लो में आ गई। फ्लो में आ गई मतलब मेरे अंदर बेचैनी नहीं था। मतलब मैं जो वो प्रैक्टिस, पहले मैं प्रैक्टिस करती थी, मेरे अंदर एक बेचैनी था कि मेरे को रिजल्ट चाहिए, होगा नहीं होगा, 10 तरह के क्वेश्चन, सब कुछ घूम रहा है, सब कुछ साथ में हो रहा है। फिर धीरे धीरे ये सब आर्ग्यूमेंट्स जाने लगे। द माइंड वाज क्लियरर, द माइंड वाज कमिंग मोर एंड मोर डिस्टिल्ड, एंड आई वाज एबल टू डू ओनली दोज 2 लाइन्स, so that I was really able to create a self-loving face। मतलब मैं अपने आप को अच्छे से देखने के लिए मैं क्यों होपोनो प्रैक्टिस करती रही, इसलिए करती रही कि अपने आप को अच्छे से परखने के लिए, देखने के लिए, और एक पीसफुल माइंडसेट में जाने के लिए इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल। बट आई विल ऑल्सो ट्राई टू मेंशन, जो भी लोग पहली बार होपोनोपोनो प्रैक्टिस करते हैं, जब भी हम कोई भी चीज शुरू करते हैं, चाहे होपोनोपोनो की कोई भी और चीज, आपका माइंड जितने भी रिजेक्शन, जितने भी लिमिटिंग बिलीव्स, वो सब सरफेस में लाना शुरू कर देगा। मतलब आपका एक चर्निंग प्रोसेस हो रहा है। तो जैसे ही वो होगा, काफी लोग घबरा जाते हैं, काफी लोगों को लगता है नहीं नहीं ये मेथड काम नहीं कर रहा है। So the problem is never in any method, the problem is always inside. When we improve the inside, the outside will improve. It is like you are the mirror. आप जो दिखा रहे हैं आपका रिफ्लेक्शन बाहर जा रहा है, जो आप अंदर से दिखाएंगे वही बाहर जाएगा। बाहर का चीज अच्छा नहीं लग रहा है, अंदर काम करना है। I hope it was helpful to you. I then got into only 2 lines, and those prayers which Srinivas shared, they are very helpful। बिकॉज मैं अगर अपने बारे में बोलूं, मेरा माइंड बहुत लॉजिकल माइंड है, मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछती हूँ, हर एक का माइंड अलग अलग तरह का होता है, आपको खुद को समझना पड़ेगा आपका माइंड का नेचर कैसा है। मेरा माइंड बहुत ही लॉजिकल माइंड है, और वो जो प्रेयर्स है, वो वाले जो प्रेयर्स जो कि एंसेस्टर के लिए या फॉरगिवनेस के लिए जो बाकी दूसरे हैं, वो वाले प्रेयर्स बहुत हेल्पफुल है अपने साइकिल को समझने के लिए, अपने जर्नी को समझने के लिए। And they were really helpful to understand my past karmic cycle, and I reached to a point where everything got merged। मतलब मैं जो भी बाकी चीजें पढ़ रही हूँ वो सभी एक जगह पे आके मिल रहे हैं। Yes, absolutely right। और आप जैसे आपने आपका बैकग्राउंड बताया, मैं एक और चीज चाहूंगा कि हम सबको एक बचपन से सिखाया जाता है एक मंत्र का रिपीटेशन, जो हम करते रहते हैं। और जब ये होपोनोपोनो आता है, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, तो उसके बीच में एक संघर्ष रहता है कि कौन सा कंटिन्यूअसली करें। जो बचपन से कर रहे हैं ये करें, या तो ये शॉर्ट टर्म एक दवाई की तरह आई लव यू, आई एम सॉरी करें, कि इसको कंटिन्यूअस करें। तो आपका एक्सपीरियंस क्या है? what we should do? वेरी नाइस क्वेश्चन। सो मेरा एक्सपीरियंस यही है कि मैं हमेशा अपने बिलीफ सिस्टम को क्वेश्चन करती रही। मैं हमेशा ये क्वेश्चन करती रही कि मेरे लिए चीजें कैसे काम कर रही हैं। मुझे ये समझ में आ गया था कि मेरे लिए चीजें तब भी काम करेंगी जब मैं उस पर यकीन करूंगी। मैं ऐसे लोगों से भी मिली जो सिर्फ राम 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 बोलते हैं, उनका लाइफ चेंज हो गया, उनका लाइफ में बहुत परिवर्तन आ गया। मैं ऐसे लोगों से भी मिली जो साईं बाबा का नाम लेते हैं और दे गॉट ग्रेट सक्सेस। साईं बाबा का नाम लेते लेते सिर्फ साईं बाबा लिख रहे हैं, साईनाथ। तो आई रीच टू अ पॉइंट वेयर आई वाज वेरी कन्विंस्ड कि कल को मुझे कोई तीसरा मेथड, क्योंकि दुनिया में मेथड की कोई कमी नहीं है। आज आप सुन रहे हैं, कल आपको कोई कोरियन टेक्निक मिलेगा, Korean technique which is very very successful there, or it's life changing. The question is never on the method. The question is not whether the method is right or wrong. The question is where in my stage of evolution I have reached,
and what I'm ready to grasp, and how open I am towards the technique, and how helpful the technique is towards me. हर चीज को टाइम देना पड़ता है, हर चीज को ट्रस्ट देना पड़ता है, हर चीज को निभा कर लेके जाना पड़ता है. अगर हम अपने ट्रेडिशनल टेक्निक्स के बारे में बोले, there are people who are able to release their resistance even with that. There is nothing wrong with those techniques. वो अलग बात है कि लोग, बहुत सारे लोग उनसे अपना रेजिस्टेंस रिलीज नहीं कर पाए. So that's perfectly fine. It is only about our own evolution journey. हम अपने जर्नी में कहाँ तक पहुंचे हैं. हर एक का जर्नी completely different है, completely exclusive है. आप अपनी जर्नी में किस तरह से अपना मेथड क्रिएट कर पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, which I right now practice and do. When I got introduced to lots of Western philosopher and Western practice, मेरे खुद के कॉन्सेप्ट जो मैं इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम में कर रही थी, those things got clear. जो half breathing technique which I believe Srinivas has shared in the group in his lecture in some of the session, you will be very surprised to know this is a pranayam technique which ancient have already been using, and this is the same kind of technique which Egyptians are also using. So the problem is never in the technique. The problem is how open are we to adopt it, what is our own stage of evolution, and how we really merge it in our lifestyle, how much we are ready to accept it. और किसी चीज को जब हम एक पूरे श्रद्धा के साथ, पूरे फेथ के साथ जब हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, we are able to move on with it. I will never say the struggle is with the technique. I mean, you will be very surprised that even in Shiv Puran, there are mention of 121 breathing techniques. और एक breathing technique से कहा जाता है कि हमें you can really manifest higher realization. सिर्फ एक प्रैक्टिस से. तो अगर हम इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम की बात करें, सिर्फ आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, देयर आर डिफरेंट योगा पोस्चर एज वेल. जो गुरु होता है वो आपको एक ही टेक्निक में मास्टरी करने के लिए बोलता है, आप एक ही चीज करो, मगर वो एक चीज आप चूज कैसे करोगे, कौन सा करोगे? देयर आर हंड्रेड्स. इट्स लाइक अ ला कार्ट. यू हैव रीच्ड अ रेस्टोरेंट, जिस रेस्टोरेंट में हर तरह का, यू आर गेटिंग स्पेनिश फूड, यू आर गेटिंग इटालियन फूड, एवरीथिंग इज देयर. अब आपको अपना डाइजेस्टिव सिस्टम समझना होगा, आपको अपना एबिलिटी टू डाइजेस्ट देखना होगा, उस हिसाब से आप आला कार्ट से चीजों को उठाएं और फिर आप अपना टेक्निक ज्यादा मॉडिफाई कर पाएंगे. एवरी टेक्निक जो भी हम करते हैं, हम तभी सक्सेसफुल हो पाते हैं जब हम खुद पर वो कैसे काम हो रहा है उसको क्वेश्चन करना शुरू कर दें. Thank you very much, ma'am. Thanks a lot. Thank you so much. मैम मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था कि अगर किसी को लाइक बच्चे को एंजाइटी है, पैनिक अटैक्स है, तो उसके लिए कैसे करें? लाइक उनका फोटो सामने रखें या क्या, कैसे करना चाहिए? तो अगर आपके कॉन्शियसनेस में कोई बच्चा है जो कि सही से बिहेव नहीं कर रहा है, तो इसमें बच्चे का कोई दोष नहीं है. ये हमारा परसेप्शन है कि हम उसको उस तरह से देख रहे हैं. सो व्हेन वी आर प्रैक्टिसिंग, वी कैन मेंटली, अगर आपका मेंटल स्किल्स बहुत, आप उसका पिक्चर, अगर आपके क्लोज रिलेटिव में है और आपका पिक्चर उस बच्चे का एकदम क्लियर है आपके दिमाग में, तो व्हेन यू आर इनटू अ मेडिटेशन, आप मेंटली उसको विजुअलाइज करके अपने ऊपर, द प्रेयर इज ऑलवेज अपने ऊपर. आई एम वर्किंग, एवरी प्रेयर इज अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, एवरी प्रेयर इज टू हेल्प टू इंप्रूव माय अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स अदर्स. मैं आपको अच्छा मानूं, दैट इज द गोल. तो जैसे ही मेरा परसेप्शन बच्चे के प्रति चेंज हो जाएगा, बच्चा चेंज हो जाएगा. मेरा परसेप्शन क्लियर नहीं है, आई एम नॉट एबल टू सी द राइट थिंग. So you can do it mentally when you are getting into the meditation practice. You can also in the beginning, if the picture is not clear, it is also suggested we can keep the picture in front, then slowly we can chant, and when we close our eyes, that is mentally there.
Okay. So you don't have to take his name or anything. He should become fine or he should be off medicines and all that. Yes, you can do that, but ultimately why you are doing it? You give me the reason. You are doing it because you will be happy. Yeah. The ultimate, yes, Because you so can't see him have- suffering. Yes. So ultimately, why you want it? You want it because you want to be happy to see in that phase. So you have to reach in that state where you are very clear that the bacha is completely healed. You have to see that. You have to be very confident that the bacha is out of that right now. Okay. You have no While doubt. chanting. Absolutely. In your vision, you made the vision clear. आप जब आंख बंद करें बच्चे को देखें, आपके दिमाग में वो पुराना पिक्चर नहीं है, आप उसको हंसते हुए देख रहे हैं जिससे आप भी खुश हैं. अल्टीमेटली आप वो कर रहे हैं. हाँ, हमारे लाइफ में जो है हमारा यूनिवर्स है. ये आपकी लाइफ में जो एक्सपीरियंस करते हैं आपका यूनिवर्स है. मेरे लाइफ में मैं जो यूनिवर्स एक्सपीरियंस कर रही हूँ वो मेरा यूनिवर्स, और मैंने क्रिएट किया है अपने कर्मा से, अपने एनर्जी से, अपने परसेप्शन से. अब वो मुझे अच्छा लगता है, बुरा लगता है, मुझे वो फाइन ट्यून करते रहना पड़ेगा. सही बात है. थैंक यू सो मच. Ma'am, can you tell us about ancestors, their curse, and how can we remove that? Sorry? In Ho'oponopono, ancestor worship is important. Can you talk about that? I'm not able to clearly hear you out. What system is important? The Ancestor curse, she said. Ancestral worship. Can you talk about that, please? Can you write it in the chat? I'm not able to understand. Crystal, I'm not getting the word. Crystal worship. उन्होंने बोला कि ancestor जो अपना prayer रहता है. Okay. और this is a very detailed subject. मैं उसको थोड़ा कम में ही बताने की कोशिश करूंगी. Ancestors is not some people जो कि हमारे लाइफ से जा चुके हैं. Ancestor हमारा खुद का पास्ट एनर्जी है. अगर हम रीबर्थ के सिस्टम को बिलीव करें तो हम एक सर्टेन घर में क्यों पैदा हुए हैं, देयर इज अ रीजन. मतलब व्हाई यू गॉट योर पेरेंट्स, देयर इज अ रीजन, एंड व्हाई यू गॉट सर्टेन एंसेस्टर, देयर इज अ रीजन फॉर दैट. कहा जाता है हमारे एंसेस्टर्स जो कि हील्ड हो जाते हैं, जो कि हायर एनर्जी लाइट की तरफ चले जाते हैं, वही हमारे कई बार स्पिरिट गाइड बनकर, मतलब गाइड बनकर हमारे हेल्प करने के लिए आते हैं. और वही एंसेस्टर्स जो हमें, जो अपनी एनर्जी हील नहीं कर पाते हैं और हम किसी तरह से उस एनर्जी के अंदर आ जाते हैं या उस ट्रैप के अंदर आ जाते हैं, they pull us down, they pull our energy system down. तो जब अगर आप ज्योतिष का कहीं आपने पढ़ा हो जिक्र, आई एम नॉट सेइंग कि ज्योतिष मानिए, ज्योतिष का ज्ञान हो अगर, तो ज्योतिष में कहा जाता है there is something like an ancestral curse, there is something like ancestor का पितृ क्या बोलते हैं उसको, पितृ दोष बोला जाता है उसको. तो पितृ दोष एक्चुअली जस्ट नॉट प्लैनेटरी पोजीशन नहीं है. अगर आप प्लैनेट्स को समझे कि प्लैनेट्स क्या है, प्लैनेट्स, देयर इज नथिंग लाइक अ सैटर्न. आपके साथ कोई पर्सनल दुश्मनी है सैटर्न की और इस कारण आपका बुरा टाइम शुरू हो जाएगा. The Saturn as a heavenly body carries certain energy. For example, हर चीज का अपना एनर्जी है. ये पेन जो मैं कैरी कर रही हूँ इसका अपना एनर्जी है, ये कप जो मेरे सामने है इसका अपना एनर्जी है. मगर इसके एनर्जी से मैं कितना इफेक्टेड होती हूँ ये मेरा एनर्जी है. ये छोटी चीजें हमारी एनर्जी को उतना इफेक्ट नहीं करती है. मगर अगर हम अपने एनर्जी को इम्प्रूव नहीं करते हैं तो जो लोग नेगेटिव एनर्जी के होते हैं, हम उनके पास जब जाते हैं हम अपना एनर्जी ड्रेन आउट कर देते हैं. इसीलिए कई बार आप फील करते होंगे शायद, there are certain people who are called as energy vampires, जिनके पास जब हम जाते हैं हमारा एनर्जी ड्रेन आउट हो जाता है. दिस इज द concept of energy system.
तो जब हम एंसेस्टर्स को प्रे करते हैं या एंसेस्टर के हीलिंग पर काम करते हैं, हम अपने सोल जेनेटिक्स पर भी काम करना शुरू कर देते हैं। दिस इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ सोल जेनेटिक्स। अगर आप गूगल करें तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी सोल जेनेटिक्स के ऊपर। और हर सोल का एक सर्टेन जर्नी होता है और एक सर्टेन एनर्जी पैकेज होता है। वही उसी को अगर हम ट्रेडिशनल सिस्टम में बोले, वही कर्मा होता है। कर्मा कुछ और नहीं है, आपका थॉट का एनर्जी, आपका माइंड का एनर्जी, आपका बिहेवियर का एनर्जी, अल्टीमेटली आप किस तरह का एक्शन लेते हैं, ये सब चीजें एक साथ मिलके आपका कार्मिक पैटर्न बनता है। तो आपका एंसेस्टर उस तरह के कार्मिक पैटर्न को ऑलरेडी कर चुके हैं, और अगर वो लोअर एनर्जी में रहते हैं तो हम काफी स्ट्रगल करते हैं लाइफ में बहुत सारे एस्पेक्ट में, क्योंकि लोअर एनर्जी, जैसे ही मैंने आपको दिखाया, एनर्जी सिस्टम फियर, शेम, गिल्ट और इस तरह के लैक की फीलिंग्स को देता है, जिसके कारण से हमारे लोअर चक्रास ब्लॉक हो जाते हैं। अगर आप रूट चक्रा के बारे में पढ़ें, सिर्फ पढ़ें, मैं आपको ज्यादा अंदर जाने के लिए नहीं बोल रही हूँ फिलहाल, तो रूट चक्रा के बारे में सिर्फ पढ़ें तो आपको पता चलेगा रूट चक्रा इज द चक्रा which is related with the energy of our ancestors। और इसके कारण ही हम अपनी बॉडी में बिल्कुल सेफ फील कर पाते हैं, हम अपने गिवन एनवायरनमेंट में सेफ फील कर पाते हैं, हम अपने मॉनेटरी इश्यूज को सॉल्व कर पाते हैं, और भी बहुत कुछ, और भी मटेरियलिस्टिकली बहुत कुछ। तो एंसेस्टर का एनर्जी हमारे लाइफ में बहुत हेल्पफुल होता है इन चीजों को अचीव करने के लिए। जब हम हीलिंग से, मतलब हो'ओपोनोपोनो की हीलिंग से एंसेस्टर के लिए भी प्रे करते हैं, हम इनडायरेक्टली अपने ही पास्ट को हील कर रहे हैं। हम अपने पास्ट लाइफ में उस तरह के एनर्जी में थे, दैट्स व्हाई वी गॉट अफेक्टेड। अगर नहीं होते तो हम नहीं होते। अगर हमने अपना एनर्जी ज्यादा रखा होता, इट्स basic science, I'm not talking anything spiritual right now, I'm talking very very scientific thing। अगर आपका एनर्जी सिस्टम हाई होगा तो आप अफेक्टेड नहीं रहेंगे। अगर आपका एनर्जी सिस्टम लो हो जाएगा, और लो कब होता है? लो तब होता है जब हम एक विक्टिम्स मेंटालिटी में चले जाते हैं, जब हमें रास्ता नहीं मिलता है, जब हम दूसरों पर ज्यादा निर्भर हो जाते हैं, हम अपने पावर्स को भूल जाते हैं। उस सिचुएशन में जब अगर आप पास्ट की हीलिंग करें, अपने एंसेस्टर की हीलिंग करें, आपके पास्ट बैगेजेस हील हो जाएंगे। आपको पास्ट का जो साइकिल है, जैसा मैं बता रही थी, सांसारिक साइकिल, उसको ब्रेक कर देंगे। जैसे ही आप उस साइकिल को ब्रेक कर देंगे, आपका थॉट पैटर्न चेंज हो जाएगा। आपका थॉट पैटर्न जैसे ही चेंज हो जाएगा, अब अभी शायद आपको सोल्यूशन नहीं दिख रहा है, फिर आपको उसी सिचुएशन में 10 सोल्यूशन मिल जाएंगे, लोग आ जाएंगे आपकी मदद करने के लिए, आपके सर्कमस्टेंसेस बदल जाएंगे। So all of that is possible, and it is done, and it is being cured to people likewise. Can you tell us more about your explanation on Mura's prayers? Okay, so जो Mura's का prayer है, it is said to be the ancient prayer जो कि group healing के लिए use किया जाता था, and as Srinivas has also shared it across, there are different aspects to it, which is related firstly with forgiveness to our own self। अपना forgiveness, हम खुद को forgive करें कि हमने अपने आप को ऐसे सिचुएशन में डाला, हमने नहीं डाला है अपने आप को। मतलब अगर आपको लगता है किसी ने आपका अपमान किया, तो वो जिम्मेदार नहीं है। हमने अच्छी बाउंड्रीज एस्टेब्लिश नहीं की थी, हमने अपना चीजों को सही से नहीं समझा, ये हमारा इशू है। तो मोहना प्रेयर रियली हेल्प करता है अपने उन एस्पेक्ट को हील करने के लिए, और डिवाइन लाइट को अपने अंदर पूरा शाइन कराने के लिए। जैसे ही आप यू विल फाइंड इट, अगर आप मन से इस प्रेयर को करें तो आपको महसूस होगा आपके अंदर पूरा डिवाइन लाइट, पूरा वाइट लाइट, या कई लोग वायलेट फ्लेम मेडिटेशन भी करते हैं इसके साथ। वायलेट फ्लेम मेडिटेशन अगर आप सर्च करें, वो भी बहुत हाई एनर्जी मेडिटेशन है, और आपके अंदर जितने भी नेगेटिविटी है वो ड्रेन आउट कर देता है। सो इट्स अ वेरी वेरी हाईली इफेक्टिव प्रैक्टिस जब हमारा माइंड बहुत हाई एंशियस स्टेट में है।
हाई एंशियस स्टेट में है, दिस प्रेयर एक्ट्स लाइक मैजिक, क्योंकि आपको तब 2 मिनट्स नूडल्स चाहिए, आपको फटाफट खाना चाहिए क्योंकि आपको बहुत भूख लगा है, आपको फटाफट मेडिसिन चाहिए जो आपको इमीडिएट इम्पैक्ट देगा। आप बहुत लॉन्ग प्रोसेस में उस वक्त नहीं जाने के लिए तैयार भी होते हैं, मेंटली फिजिकली भी, और इन सब चीजों के लिए दिस रियली वर्क्स एज मिरेकल। Thank you, ma'am. Good evening, ma'am. Hello. Yeah, you can call me Anuradha. Okay, Anuradha. Ma'am, can we do this for somebody else also on their behalf? As you know, last year say we have been having a very difficult time, and most of the people are suffering and due many other phases also, like jobs, relationships, and everything. But when you introduce them to something new, everybody is not so comfortable in accepting the things. Okay, I will give you a very small example. आपको मैं एक बहुत छोटा सपना, you are सपना ना? Yes, ma'am. Yes. सपना, I will give you a very small example. Right now, अगर आप टीवी ऑन करेंगी, टीवी, तो आपको हर न्यूज चैनल में तालिबान क्या कर रहा है, and all kind of such news you will find. हाँ? Exactly. So now you will say कि मैं तो कभी गई नहीं अफगानिस्तान, and what is that it has to do with me? But indirectly, if it has come to your conscious environment, और अगर आप उससे affected हो जाती हैं, affected मतलब आपको बेचैनी हो गई वो न्यूज देख के कि अरे इतने लोगों को मार रहे हैं, ऐसा कैसे हो रहा है, तो you are responsible for it. So if there is anyone else, कोई भी जना, he or she do not have to be in your close vicinity. I have sent prayer healings for people in very distant places, and even I have participated in group healing जहाँ पे हमने अनजान लोगों के लिए प्रे किया है जिनको हम कभी नहीं मिले, मगर क्यों प्रे कर रहे हैं? क्योंकि हम एक शेयर्ड मेमोरी में है। अब वो शेयर्ड मेमोरी आया कहाँ से? सो ये सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वहाँ हम सबके मेमोरीज एक साथ शेयर होती है, मतलब वो जो डिवाइन माइंड है वो हम सभी एक साथ शेयर करते हैं जी। तो बिकॉज ऑफ दैट लॉजिक, हम, अगर आप मेरे एक्सपीरियंस में आए हैं और आपकी बातों से मैं अफेक्टेड हुई हूं, तो मुझे आपके लिए भी हील करना चाहिए। इट्स लाइक दैट। तो आपकी एक्सपीरियंस में जो लोग आए हैं रात को, इनफैक्ट आई ऑलवेज सजेस्टेड, इनफैक्ट आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो जब हील होंगे आप भी हील होंगे, और आप हील होंगे तो वो भी हील होंगे। इट्स लाइक दैट जी। So the four phases. Sorry to interrupt. I'm very sorry to interrupt. In fact, आप दिन में किसी भी लोगों से मिले, अगर आप affected होते हैं उन लोगों से मिलकर, I will suggest you pray for them. It doesn't matter if you know or you don't know them, because अगर किसी के लाइफ से आप affected होते हैं, इसका मतलब वो चीज आपके अंदर है, इसीलिए वो आपके सामने आया है। Okay, ma'am. Okay. How much time should we do this continuously? 10 minutes, 15 minutes, or there's some time which will, Okay, so everywhere, whenever I have been practicing it, इसका सिर्फ simple answer ये है, I never say 15 minutes, 10 minutes or half an hour. I always say listen to yourself. कई लोग बहुत टाइम से प्रैक्टिस करते हैं तो वो 10 मिनट्स में ही अपने आप को एक बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट में ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कई लोग बहुत मेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको ज्यादा टाइम लगेगा, आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। सो द आंसर इज योर ओन सेल्फ। आपका अंदर से आंसर आएगा, नहीं मुझे और करना चाहिए। अगर वो करके आपको बेचैनी बढ़ रहा है, आपको और घबराहट हो रही है, देन यू टेक ब्रेक एंड देन अगेन डू इट। सो it's always you who is the right answer provider. Ultimately, ये प्रैक्टिस करने के बाद आपका मेंटल लेवल बहुत कूल हो जाना चाहिए, आपको मेंटली बहुत पीसफुल फील होना, I mean that is the indicator. अगर आप पीसफुल नहीं फील कर रहे हैं, इसका मतलब मैं और कर सकती हूँ, I must do it. मगर अगर आपका बेचैनी, I have also met people जो स्टार्टिंग में करते हैं और they have lots of anxiety issues, lots of mental trauma already, मतलब mental trauma मतलब mental questioning था there,
So I always have seen and practiced with them to take some breaks, क्योंकि आप अचानक से तैयार नहीं हैं अभी उन चीजों को पूरी तरह से एक्सेप्ट करने के लिए, आपका माइंड उसको खोल नहीं रहा है. Why I am doing opposition? Because my subconscious mind is not allowing the gates to open. So don't force anything against your system. Your system is the guide कि आपको कितना करना चाहिए. आपको अल्टीमेटली पीसफुल फील करना, दैट इज द स्टेज. मतलब अगर आप ये प्रैक्टिस करने के बाद आपको अच्छा फील होगा, दैट इज द इंडिकेटर. Okay. Thank you. Anything else? It seems no more doubts, no more questions. Anybody else needs any clarification? Please feel free to ask. Anuradha madam is not a stranger. She is our own madam. We can get clarified. Seems no more questions. Really thankful. Yes, sir, please. Yeah, there are so many tools described by Dr. Hewlett. So how to use them? Because we हिंदुस्तान में फॉर्म या ऐसा मिलना मुश्किल हो जाता है. तो how to use this effectively? Even solar water also. हाँ, solar water जैसे even I also practice. I have got that glass bottle and that's very effective. What I have मतलब मैंने अपने लाइफ से जो सीखा है मैं वही चीज शेयर कर सकूंगी, और जो मैंने बाकियों को देखा है करते हुए वही चीजें शेयर कर पाऊंगी फिलहाल. तो मैंने देखा है अगर जैसे ब्लू वाटर मेरे लिए बहुत सक्सेसफुल. आई मीन व्हेन आई स्टार्टेड विद दोस 4 लाइंस, आई जैसे मैंने आपको मेंशन किया मेरा एक रिजिड माइंडसेट था. और मैडम वी शुड टेल दिस प्रेयर टू आवर व्हाट इज दिस to our inner child. What is inner child or God, which is more effective? The inner child, I will answer, I will take this question. Okay, so when you are saying about the solar water जो मैंने experience किया, जो मैंने use किया है, I have taken a very simple glass bottle, not getting into any technicality, but what I have seen in many other practices. मतलब क्योंकि मैं सनातन धर्म और उसके लाइनेज से आ रही हूँ, तो मैंने बहुत बार देखा है अपने घर में तांबे के लोटे में, तांबे के ग्लास में हम लोग पानी पीते रहे हैं. और तांबे के बोतल में या जार में जब पानी रखा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्लू वाटर, आई एम जनरली शेयरिंग माय एक्सपीरियंस. सो माय ग्रैंड पेरेंट्स, आई हैव सीन देम कि वो ना मंत्रा बोल के उनमें रखते थे. एंड दिस इज पार्ट ऑफ आवर कल्चर. और वो पानी बोला जाता है शुद्ध किया गया, पानी शुद्ध किया गया है. तो उसी तरह से मैंने ये देखा कि नॉर्मल ब्लू कलर का कांच का बोतल, आई एम नॉट सेइंग प्लास्टिक का बोतल, आई एम नॉट सेइंग एनी अदर, ब्लू कांच बिकॉज कांच इज मोर इको फ्रेंडली एंड इज मोर ऑर्गेनिक बाय नेचर एंड नॉट हैविंग एनी अदर plastic element on it, but cork or something which is very natural. तो उस तरह के बॉटल को अगर हम what with those 4 lines when we start and then keep it in solar experience, I mean sun में exposure दे उसका 15 से आधा घंटा, और उसके बाद उसको फिर से 4 lines बोलते हुए then we keep on drinking water from that bottle only. हम उसी बॉटल से पानी पिए पूरा दिन. There is no logic for it, but it has worked. It has really worked. And one of the other reasons for it, I feel in my case, was I had less resistance for this, particularly because by the time जब मैं ये blue water experiment अपनी life में कर रही थी,
तो मेरा रेजिस्टेंस ऑलरेडी काफी कम हो चुका था. स्टार्टिंग में जब किया था तो आई हैड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस एंड लॉट्स ऑफ रेजिस्टेंस टुवर्ड्स द सिस्टम. मतलब ये काम करेगा नहीं करेगा, तो बहुत सिंपल है. एंड मेरे को सिंपल चीजें उतना इजी, मतलब जो इजी है वो नहीं करेगा काम. ऐसा होता है ना कि सस्ता है तो शायद नहीं चलेगा. यू ऑलवेज लुक फॉर थिंग्स विच आर थोड़ा महंगा होगा तो ज्यादा अच्छा चलेगा. इट्स अ परसेप्शन थिंग. So it's like that only. But this blue water thing really was very, very helpful. Will the blue water cure diseases? Yes, yes. It is like the same. It is same. You are, what you are doing, you are taking the energy. अगर आप solar energy पर research करें, so this is one of the energy जो आप बाकी जगहों से नहीं ले सकते हैं. You need to have direct exposure of sun. And जो दूसरी चीजें हैं जो इस सोलर एनर्जी को रियली बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हैं वो होते हैं ग्रीन प्लांट्स. एंड दैट्स वन ऑफ द रीजन we have been mentioned to take lots of green vegetables or green plants in our food, because green plants are the only particular vegetables or particular category of things which can absorb all the solar energy. And why solar energy? Because there are secret things which is said that sun is a very, very intelligent system being, and sun really helps to heal. Heat is said to be one of the energy healer in curing many kind of past lineage issues. अगर आप हीट ट्रीटमेंट देते हैं और कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं तो ये हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट भी बहुत तरह का इफेक्टिव रिजल्ट दिखाता है बॉडी में. और सन being a source of light, being the source of heat, and also lots of knowledge. Sun is said to be a source of great knowledge. इसलिए बहुत सारे एसोटेरिक कल्चर में सन को बहुत वर्शिप किया जाता है और सन के पर बहुत मेडिटेशंस है. तो उसकी सारी चीजें उस पानी में आ जाती हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट वो पानी फिर हील करने के लिए आपको काफी तैयार. इन एनी काइंड ऑफ थिंग यू हैव टू स्टार्ट विथ ट्रस्ट. आपको अपने आप पे यकीन रखना है कि आप बिल्कुल इसको करने के लिए तैयार है. एंड दूसरा, दिस इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर मी. You have to always remember whatever you are doing, this is the best thing for you. You jump into the water with the trust that you will be able to swim. अगर आपके अंदर डाउट होगा कि अच्छा पानी में जंप कर रही हूँ, शायद स्विम कर पाऊं नहीं कर पाऊं, फिर आप डूब जाएंगे पक्का. तो आपको पूरा श्रद्धा, पूरा भक्ति, पूरा डिवोशन, पूरा फेथ के साथ शुरू करना है. आप कुछ भी करें. एंड द सोलर प्रैक्टिस इज सेड टू बी रियली इफेक्टिव फॉर diseases healing and energy healing in relationship. It's really wonderful. And even money issues. Ma'am, what was the question? Ma'am, can I chant on behalf of my... Absolutely, absolutely. Because again I am saying, अगर आपके इर्द गिर्द, आपके ब्रह्मांड में कोई भी चीज है जो भी आपको तकलीफ देता है, आप उसके लिए प्रे कर सकते हैं, आप उसको हील कर सकते हैं, क्योंकि वो हील हो जाएगा, आप हील हो जाएंगे, आप हील हो जाएंगे, वो हील हो जाएगा. We all have shared memories. Anything else? Please share your experience using the prayer for absolutely. Relationship issues इस prayer से बहुत अच्छे से heal होती हैं, because actually what you are doing when you are praying, you are asking for forgiveness that you created that trouble in that particular relationship. What is the trouble? The trouble 90% of the time in relationship, the issue is that we are never heard. हमको सही से सुना नहीं गया. 90% लोगों में ये देखा गया है रिलेशनशिप इशू. ये नहीं होता है कि आपको, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्यार? प्यार का मतलब ये नहीं होता है कि आपको कितनी बार आई लव यू बोला गया. प्यार का मतलब ये कि आपको सुना नहीं गया और आपको तवज्जो, आपकी बातों को ध्यान नहीं दिया गया. और वो ध्यान नहीं दिया गया, इट्स नॉट द अदर पर्सन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट इज यू हु हैव indirectly created that situation for yourself. So जब
हम ये वाला प्रेयर शुरू करते हैं अपने उन पार्ट्स को हील करने के लिए और अपने आप के लिए फॉरगिवनेस के लिए कि हम तैयार हैं उन चीजों को छोड़ने के लिए, बिकॉज 90% ऑफ द टाइम हम एक टॉक्सिक चीजों को भी पकड़ के रखते हैं क्योंकि हमने पूरा सीखा नहीं होता। बुरी चीजें भी हमको सिखा के जाती हैं, बुरा एक्सपीरियंस भी आपको सिखा के जाएगा। एवरीथिंग इज अ टीचर, एवरीथिंग इज गिविंग यू अ फीडबैक। सब कुछ आपको एक फीडबैक देता है। आपके एनवायरनमेंट में कुछ अच्छा होता है, गलत होता है, वो आपको एक फीडबैक दे रहा है, आपके बारे में फीडबैक दे रहा है। आपको अच्छा लग रहा है, आप उसे नोट कर ले और अपने से बोले कि ओ वाओ, दिस इज सच अ गुड थिंग व्हिच आई हैव डन। Appreciate your inner child when you find something good in your environment. और अपने एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा देखते हैं जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, immediately counsel your inner child. You can do that with that mirror practice which I mentioned. जब आप मिरर के साथ वो प्रैक्टिस करें तब भी आप अपने इनर चाइल्ड से अच्छा बात करें, मतलब अच्छी चीजें बात करें। We are chanting for our loved ones in case that solar water should be drained, but no, it's not necessary that they have to drink it. You drink it because you are trying to heal that memory within yourself. आप अपने अंदर उस शेयर्ड मेमोरी को क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं सिंपल सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। सपोज कीजिए मैं प्रेयर कर रही हूँ आपके लिए कि आपको अच्छा जॉब मिल जाए, ठीक है, इट्स अ फिक्टिशियस सिचुएशन। अब मैंने वो पानी का बॉटल लिया, मैंने प्रे किया और मैं हमारे अंदर हमारे शेयर्ड मेमोरी में जो कि फाइनेंशियल क्रचेस या जो भी चीजें हैं जो शायद मैं अभी एक्सपीरियंस नहीं कर रही हूँ, मगर फिर भी मैं अपने तरफ से उसको हील करने की कोशिश करूंगी। मैं एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ कि आप वो करें, अगर आप करती हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, बट मैं आपके लिए कर रही हूँ। यू गॉट द पॉइंट? हम अपने लिए करते हैं, हमारे अंदर पूरा ब्रह्मांड है, हमारे अंदर पूरा ब्रह्मांड है। I mean, I have been into prayer healings for people in Ireland, in Scotland, in Malaysia, in many other countries, many other countries. I have never met them. मैंने उनको कभी देखा नहीं, मैं उनसे कभी नहीं मिली, मगर वो पर्टिकुलर इशू मैं अपने लाइफ में या अपने मेमोरी से डिलीट करती हूँ। That's the power of the prayer, and that's the intention for all kind of practices actually. Does it satisfy you? Is it helpful to you? Thank you. One consciousness, absolutely. We have one consciousness, that is a unified consciousness, and we are all linked through it. मैं अगर किसी से मिलती हूँ और अगर वो लोग मुझे अच्छे लगते हैं, there is nothing accident in life. I am there और उनकी चीजें मुझे अच्छी लगती है क्योंकि मैं अपना ही अच्छा रिफ्लेक्शन उनमें देख रही हूँ। और मैं अगर किसी से मिलती हूँ और मुझे उनकी चीजें अच्छी नहीं लगती है, इसका मतलब मेरा ही डिवाइन अलाइनमेंट क्लियर नहीं है। वो अच्छे लोग हैं क्योंकि बुरे लोग कोई नहीं बुरा होता है, तो मेरा अलाइनमेंट क्लियर नहीं है। मेरा अलाइनमेंट जैसे ही क्लियर हो जाएगा मैं उनको भी अच्छे से देखने लगूंगी। Thank you so much that you were ready to listen to me. मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ क्योंकि कई बार हम सुनते हैं मगर हम तैयार नहीं होते रिसीव करने के लिए। तो आपने इतने सारे क्वेश्चन पूछे मुझसे, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं तैयार हैं। I am very thankful that you are ready to change and ready to receive. It's a wonderful gesture. Anything else? Thanks so much. Thanks to all of you for joining today's session, and we're really thankful to Dr. Anuradha Modak Devnath, her full name. I'm really happy to have her to give a session. It's only because of her experience.
experience of ancient spiritual practice, Advaita Vedanta. And when a person practicing the ancient Indian traditions and the ancient traditional mind healing modalities, the same person explaining about the ancient Hawaiian problem solving process, it is really wonderful experience. You could feel that energy when she was explaining the things and giving the example from ancient scriptures like Shiva Purana and other examples when she's taken. I was really happy to have such a session. Thank you so much. I'm sorry that I'm not fluent in Hindi. हिंदी में बात करने के लिए थोड़ा मुश्किल आता है, इसीलिए मैं जो भी बोलता हूँ हिंदी इंग्लिश में बोल देता हूँ क्योंकि कुछ गलत ना हो ये। तो मुझे भी नहीं पता मैंने कितना हिंदी बोला। मैंने कोशिश किया था मैं हिंदी में शुरू करूं, पर मैंने ऐसा बोला कि मैं इंग्लिश में सोचती हूँ, मतलब शायद मैं बहुत इंग्लिश में बोली। Thank you very much, madam. Really, we're really happy to have such an enlightening session, and thank you very much for sharing your knowledge, So much. energy. Thank you so much. Yes. Thank you so much that we were able to be together and we heal those shared memories which are bothering us, and we be part of the divine light and share our own wonderful experience with the rest of the world. Thank you. Okay, thanks to all of you. Thank you. Bye bye. See you. Tata.